आला. दिसला? ओके. हो. सर ऍक्टिव्हिटी बेस्ड राहील का सेशन आपलं? नाही, ओके. ऍक्टिव्हिटीज नाही आहे याच्यात काही. ओके. जस्ट सिंपल कन्सेप्ट दोन देईल मी. अच्छा, ठीक. So we will begin with our first session. तुमचा व्हिडिओ ऑन करून द्याल. येस मॅम. Yes, sir. So very good morning to one and all. Today for first session we have with us respected Dr. Ashish Linge sir. Sir, I welcome you on behalf of UGC HRDC Nagpur to this Thank you, ma'am. online course on refresher course, ICT application and soft skill. Friend, sir is working as assistant professor and training and placement officer with Department of Business Management, CP and Berar College, Nagpur. He holds PhD degree in business management and pursuing another PhD in economics. He has more than 18 years of teaching and experience. About his achievements, he has delivered lectures in more than 500 workshops on research methodology, statistical analysis, and soft skills in more than 100 institutions across Vidarbha. He has conducted workshops on research paper writing, thesis writing, synopsis writing, hypothesis testing, statistical analysis with MS Excel and SPSS software for data analysis. He has trained more than 5,000 PhD scholars till date. He worked as a resource person in several faculty development programs, orientation programs, refresher courses, ICT workshops, and IQAC workshops as well. He is working as a trainer for pre-PhD coursework for 5 universities. He has to his credit number of books as well as research papers. So with this brief introduction, I request Ashish Linge sir to please enlighten the participants on the topic emotional intelligence. Sir, please. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thanks for introducing me. Good morning, everyone. I've been conferred with the responsibility to deal with the topic, as you can see on the screen, emotional intelligence. In fact, I was supposed to engage 2 sessions today, but somehow I'm not feeling well. So today we'll be focusing more on the emotional intelligence part. You must be knowing that you are undergoing a course, a refresher course on ICT and soft skills. So 2 different issues are there. One is ICT and the second one is soft skills. And Sir, incidentally, सर Yes, ma'am. आपण मिक्स लँग्वेज ठेवूया, हिंदी मराठी इंग्लिश. शुअर. याच्यानंतर ऍक्च्युअली मी तीच लाईन बोलणार होतो. ठीक है ना. ओके, प्लीज कंटिन्यू. तो हिंदी और इंग्लिश में बात करना चाहूंगा बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. तो सॉफ्ट स्किल्स और आईसीटी से 2 मॉड्यूल्स हम लोगों को करने हैं. उसमें से इमोशनल इंटेलिजेंस ये जो टॉपिक है ये सॉफ्ट स्किल का टॉपिक है. तो दिस इज माय कॉमन क्वेश्चन टू यू. मैंने चैट बॉक्स ओपन रखा है, आप वहां पे आंसर कर सकते हैं सब लोग. आपने इमोशनल इंटेलिजेंस ये टॉपिक के बारे में इससे पहले सुना है क्या? आपने इमोशनल इंटेलिजेंस ये टॉपिक के बारे में इससे पहले सुना है क्या? एक रिप्लाई तो आ गया है मुझे राजेश सर का. एनीवन एल्स? अच्छा, बाकी लोगों के रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं तो लग रहा है शायद यस यस. आई कुड सी 3 यस 2 नो. नहीं. ओके ओके वेल, मैं ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे कहाँ से शुरू करना है वो जस्ट थोड़ा सा एक आइडिया लेनी थी और आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है ये टॉपिक को लेके. तो ऑब्वियसली मुझे आई गॉट द मैसेज नाउ कि मुझे बेसिक से ही शुरू करना है. बेसिकली ये टॉपिक जो है ना ये साइकोलॉजी जो डिसिप्लिन है उसको बिलोंग करता है. और ये टॉपिक वैसे तो 1964 से एग्जिस्ट कर रहा है अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो, पर ये बेसिकली फेमस हुआ 1995 में. और इंडिया में ये टॉपिक तो शुरू से था पर उसको शायद इमोशनल इंटेलिजेंस नाम नहीं था, पर ये टॉपिक अस्तित्व में है. तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं. ये थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव सा टॉपिक है.
देखिए, एक दिन भी अगर मुझे बोला गया बात करने के लिए तो भी शायद मुझे कम पड़ जाएगा, इतना ये कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। पर हम लोगों को इसमें रिसर्च नहीं करना है ना, हम लोगों को इन डेप्थ तो जाना नहीं है। हम लोग जस्ट इसको एक कंसेप्ट क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में और करियर में, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो 90 मिनट है हमारे पास, तो समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये टॉपिक क्या है। मेरा और एक क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे यस दिख रहे हैं यहाँ पे, मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि आप में से कोई ऐसा है क्या कि जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड को बिलोंग करता है? तो रिप्लाइज प्लीज। आप में से ऐसा कोई है जो साइकोलॉजी को बिलोंग करता है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये कोर टॉपिक है। एक यस दिख रहा है, पराग कावे सर। ओके, शायद पराग कावे सर और इसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं। तो मैं लगभग 1 घंटा 10 मिनट तक बात करूंगा और 10 मिनट हम लोग डिस्कशंस करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। तो शायद पराग सर हम लोगों को कुछ वैल्यू एडिशन कर दे टुवर्ड्स द एंड। सो पराग सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम सर। सो वी आर गेटिंग इनटू द टॉपिक नाउ। देखिए, 1978 में एक बड़ा किस्सा हुआ दुनिया में। आप जैसे देख रहे हैं, एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन टेड नाम से। और ये आदमी ना, जिसको इंटेलेक्चुअल कहते हैं ना, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट था और मैथमेटिशियन था। और 1978 में एक दिन ये न्यूज़ आई कि ये जो बंदा है, टेड साहब, ये किसी ड्रग रैकेट में पकड़े गए, एडी में। और ऑब्वियसली ये चर्चा शुरू होना स्वाभाविक था कि ऑब्वियसली यार, इतना बड़ा मैथमेटिशियन, उसके पास पैसा है, नाम है, सब कुछ है, सेटल्ड है करियर, और इसको क्या ऐसी पड़ी थी कि यार ये ऐसे सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व हो गया। तो ये चर्चा का विषय बन गया और ये चर्चा इतनी गहरे लेवल पे हो गई कि ये शायद, यानी ये इन्होंने जो किया था एक सिंपल सी एक्टिविटी पर, मुझे लगता है कि ये अननेसेसरीली वो पर्टिकुलर चीज में इसलिए चले गए क्योंकि इनका आईक्यू शायद बहुत बेटर था पर ईक्यू शायद कमजोर था। तो मुझे लगता है ईक्यू के डिस्कशंस यहाँ से ही शुरू हो जाते हैं। 1978 ये एक ब्रेक थ्रू बोल सकते हैं कि एक्चुअली ये ना कंसेप्ट जो है 1916 में वगैरह पहली बार, इसका नाम कुछ और था उस वक्त, पर ये 1916 में वगैरह ये एक्चुअली डिस्कशन होना शुरू हो गया था। और इसको एक्चुअल नाम जो पड़ा और ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ 1964 में, एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की टर्म कोई ऑफिशियली कॉइन की गई और 1995 में ये पॉपुलर हुई। और इंडिया में भी आप देखेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स, आप देख रहे हैं पिछले 15 सालों में ये चर्चा का विषय है। और उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की भी चर्चा हमेशा देखी जाती है जब भी सॉफ्ट स्किल्स का उल्लेख होता है। आप ये नाम नोट कर लेंगे, ये डेनियल गोलमन साहब है। इन्होंने ना 2 किताबें लिखी, आप जैसे स्क्रीन पे देख भी सकते हो। एक है इमोशनल इंटेलिजेंस और दूसरा है वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये दोनों किताबें बहुत ज़्यादा पॉपुलर, यानी बेस्ट सेलर्स कैटेगरी जिसको कहते हैं, वो कैटेगरी में ये दोनों किताबें हैं। जनरली ऐसा देखा गया है कि कोई पहली किताब अगर हिट हो जाती है तो दूसरी किताब नहीं चलती, यानी सीक्वल्स जनरली चलते नहीं है। बॉलीवुड में भी वही ट्रेंड है। पर ये किताब का उल्टा हुआ, जितनी पॉपुलर फर्स्ट किताब हुई थी उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा दूसरी जो किताब है ये पॉपुलर हुई। और इंसिडेंटली मैंने ये दोनों किताबें पढ़ी है और मैं भी कन्विंस हो गया कि शायद दूसरी किताब जो है वो ज़्यादा बेटर है और अप्लाइड है। तो आप अगर और डिटेल में जाना चाहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, तो ऑब्वियसली यू मस्ट गो थ्रू बोथ दिस बुक्स। देखिए, 4 साल पहले मैंने तरुण भारत के लिए एक आर्टिकल लिखा था इमोशनल इंटेलिजेंस नाम से, आप जैसे देख रहे हो स्क्रीन पे। और ये आर्टिकल ने मुझे शायद थोड़ा फेमस भी कर दिया। इतने सारे फ़ोन मुझे आए ये टॉपिक को लेके, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि न्यूज़पेपर की लाइफ तो शायद 1 दिन की होती है, पर मुझे लगभग 2 महीने तक लगातार ये एक आर्टिकल की वजह से फ़ोन आते रहे। और मुझे पता चला कि लोगों में कितनी क्यूरियोसिटी है ये पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। ये आर्टिकल की खासियत ये थी कि आज भी आप गूगल पे या फिर किसी किताब में ये कंसेप्ट पढ़ने जाएँगे या समझने जाएँगे तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि ये कंसेप्ट हमारा इंडिया का नहीं है। ये फ़ॉरेन से आया हुआ कंसेप्ट है और जो भी अच्छा लिटरेचर अवेलेबल है वो इंसिडेंटली उनकी लैंग्वेज में, ख़ास करके इंग्लिश में ये लिटरेचर अवेलेबल है। और ऑब्वियसली एग्ज़ाम्पल्स जो साइट किए गए हैं किताब में, वो भी उसका कॉन्टेक्स्ट भी फ़ॉरेन होने की वजह से वी कांट कनेक्ट विद इट, वी कांट रिलेट विद द कंसेप्ट। और मैंने ये कोशिश की थी कि ये टॉपिक को एक आम आदमी की भाषा में समझाने की कोशिश करूँ और वो इंसिडेंटली क्लिक भी हो गया। मैं ये शेयर भी कर दूँगा आपके साथ। यू जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। इंसिडेंटली ये मराठी में मैंने लिखा हुआ है।
देखिए, ये आज 5 मुद्दे हैं चर्चा का विषय हमारा कि मेरे पास जो अभी लगभग 80 मिनट है, उसमें मैं ये 5 टॉपिक पे इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रोसीड करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस जो कोर थीम है हमारी, उसका मतलब क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे और इसके ना फैसेट्स है जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग कहते हैं और लगभग 10 कैरेक्टरिस्टिक्स इमोशनल इंटेलिजेंस की मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा और हम लोग ना बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स डे टू डे लाइफ़ के डिस्कस करने की कोशिश करेंगे सो दैट ये कांसेप्ट जो है ना ये थोड़ा अपना-सा लगे, थोड़ा-सा आसान लगे। उसके बाद साइंस ऑफ हाई ईक्यू एंड साइंस ऑफ लो ईक्यू यानी एक आदमी में ईक्यू की मात्रा कम है या ज़्यादा है, ये पहचानेंगे कैसे? उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे हैं, पर टाइम लिमिटेड होने की वजह से मैं एक 3-4 दोनों में हाई ईक्यू के साइंस और लो ईक्यू के साइंस मैं 3 से 4 उसके जो पहलू है वो डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। टुवर्ड्स देन आई विल जस्ट कंक्लूड द टॉपिक। So with this background, we are now actually getting into our core discussions. हमारा पहला सेक्शन है टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। वैसे तो बहुत सारे टाइप की इंटेलिजेंस है, पर यहाँ पे मैं 4 इंटेलिजेंस क्वोशंट्स जो है उसका उल्लेख कर रहा हूँ। सबसे पहला जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है वो है इंटेलिजेंस क्वोशंट और आपको भी मालूम है ये एक्चुअली आदमी की होशियारी, एक आदमी कितना होशियार है वो जानने का मेजर या उसका प्रमाण, जिसको हम लोग आईक्यू कहते हैं और आपने ये ऑब्वियसली ये सुना होगा, आपको मालूम भी होगा। और ये कंसेप्ट जो है ये सबसे पुराना कंसेप्ट है। ये 1905 में यानी बुद्धिमत्ता, एक आदमी का लॉजिक, एक आदमी का एनालिसिस करने का तरीका, इसका लॉजिक कितना तगड़ा है, ये जानने के लिए जो मेजर है, उसको हम लोग जनरली आईक्यू कहते हैं और ये सबसे पुराना मेजर है और ये एक पर्सनैलिटी का ऑब्वियसली एक पहलू भी है। देखिए, आईक्यू को हम लोग हार्ड स्किल्स कहते हैं। जैसे हम लोग अभी आज जो डिस्कस कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स, तो सॉफ्ट स्किल्स से पहले हार्ड स्किल्स आती हैं। 2 प्रकार की स्किल्स होती है, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स का एक जस्ट 2 लाइन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमारा फोकस जो है वो ईक्यू पे ज़्यादा रहेगा, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा रहेगा। और हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स ऐसे 2 प्रकार की स्किल्स होती है। हार्ड स्किल्स जो है जैसे इसका नाम ही बता रहा है, हार्ड स्किल्स आर दो स्किल्स की जिसके आप एविडेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हो कि आपके पास ये स्किल्स है। ये ना टेंजिबल स्किल्स होती हैं। ये बेसिकली ना हार्ड स्किल्स जो है हम लोग वो फॉर्मली ग्रास्प भी करते हैं। यानी हम लोग जो फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं नर्सरी से लेके पीजी तक का, आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक सिस्टमैटिक फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो की है, बाकायदा एडमिशन ली है हम लोगों ने, एग्ज़ाम्स दिए हैं और आपके पास मार्कशीट्स है। और आपके पास एविडेंसेस है कि आपको कितने परसेंट है, आपके पास सर्टिफिकेट्स है, आपके पास डिग्रीज़ है कि आप दिखा सकते हो कि आपके पास क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। हार्ड स्किल्स मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक होते हैं हार्ड स्किल में आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस और दूसरा होता है आपका तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस और इसमें आपके टेक्निकल स्किल्स भी आती है। अगर आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे, आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स बहुत अच्छा बनाना जानते हो, तो एक्चुअली आपके पास हार्ड स्किल है। आपके पास तजुर्बा है 20 साल का, तो एक्चुअली आपके पास हार्ड स्किल है। आपके पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस है, डिग्रीज़ है, सर्टिफ़िकेशंस आपने किए हुए हैं, आपने पीएचडी किया हुआ है, आपको अवार्ड हो चुकी है। तो ये सब प्रमाण है कि आपके पास ये पर्टिकुलर स्किल्स है और ख़ास करके आपके जो मार्क्स है, ये बताते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं और इंडिया में तो ऐसा ही है कि मार्क्स देख के हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आदमी कितना बुद्धिमान है। मैं जस्ट थोड़े से पहलू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आईक्यू में क्या-क्या आता है? आईक्यू इज़ रिफ्लेक्टेड इन योर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास डिग्री कौन-सी है और जिसके आप एविडेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हो। दूसरा है आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स, अगर आप मेरिट में आए हो, आपने डिस्टिंक्शन लिया हुआ है किसी सब्जेक्ट्स में, तो ये आप एक्चुअली आपके आईक्यू या फिर आपकी हार्ड स्किल्स को प्रमाणित करता है। आपने कितने एग्ज़ाम्स पास किए हुए, आपने नेट एग्ज़ाम पास की है क्या? आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पास किए हैं क्या? आपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स पास किए हैं क्या? आपने पीएचडी का वाइवा क्रैक किया है क्या? ये सब बातें होती है हार्ड स्किल्स की और एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके आईक्यू की। आपको मार्क्स कितने आए हैं? आपने कौन से इंस्टीट्यूट से, अगर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से आपने कोई कोर्स किया जैसे आईआईटीज़ और आईआईएम्स हम लोग इंडिया में मानते हैं और जानते भी हैं। तो वहाँ से अगर आपने ऑब्वियसली कोई डिग्री परस्यू की है तो आप बुद्धिमान माने जाते हो यानी आपका आईक्यू लेवल अच्छा है ऐसा माना जाता है। जो आदमी ने नेट और सेट ये एग्ज़ाम क्रैक किए ऑब्वियसली उसके लिए एक रिस्पेक्ट ऑब्वियसली जनरेट होना शुरू हो जाता है क्योंकि नेट एग्ज़ाम पास करना एक आम आदमी की बात बस बस में नहीं होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग ये उसके बारे में इंटरप्रिटेशन करेंगे कि यार ये आदमी ने नेट किया हुआ है, उसने पोस्ट डॉक्टरल किया हुआ है, आईसीएसआर का कोई प्रोजेक्ट फाइनेंस्ड फंडेड प्रोजेक्ट उसने किया है, तो ऑब्वियसली हम लोग बात करते हैं कि यार ये आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये आदमी बुद्धिमान है और एक्चुअली यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अपने आईक्यू की। देखिए, ये 3 चीज़ें हैं इंटेलिजेंस क्वोटिएंट में।
ये आपका एनालिटिकल स्किल, आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन की स्किल या आपकी एबिलिटी, आपका लॉजिक कितना तगड़ा है, ये अगर आप बात कर रहे हो तो एक्चुअली हम लोग आईक्यू की बात कर रहे हैं। आईक्यू आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटीज होती है कि आपका तजुर्बा हो, आपके एक्सपीरियंस हो या आपके पास कोई टेक्निकल स्किल हो, जो सिर्फ आपके पास है, तो हम लोग एक्चुअली आईक्यू की बात करते हैं। और आईक्यू जो है, वो आपको इंटरव्यू का कॉल लाके देने के लिए मदद करता है। यानी किसी इंटरव्यू में किसी आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया और आपके पास बहुत सारे क्रेडेंशियल्स है। आप मेरिट में आए हैं, आप हुँ। अच्छी जगह आपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं, आपने पीएचडी किया हुआ है, तो ये एक्चुअली हम लोग आईक्यू की और या फिर हार्ड स्किल्स की बात कर रहे हैं। और इसकी वजह से आपको डेफिनिटली इंटरव्यू का कॉल तो आ जाएगा। आप इंटरव्यू में क्या करते हैं, दैट पार्ट इज़ अ पार्ट, बट स्टिल आईक्यू की वजह से एक्चुअली यू गेट इन द डोर। देखिए, आईक्यू प्रमाणित करता है कि आपको बुक का नॉलेज कितना है। आप मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स कितने इजीली सॉल्व कर सकते हो, कितने क्विकली कर सकते हो, आपकी मेमोरी कितनी तगड़ी है, आप सब्जेक्ट मैटर जो है वो किस तरह से ग्रास्प करके रिप्रोड्यूस कर सकते हो। ये सब चीज़ें प्रमाणित करती है कि आपका आईक्यू लेवल जो है वो तगड़ा है। देखिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है, उसमें जो जनरल नेचर का एक एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर होता है, वहाँ पे एक्चुअली आईक्यू टेस्ट करने की कोशिश होती है। आपको भी मालूम है, यूपीएससी इंडिया में जो है, वो सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम्स लेते हैं, आईपीएस हो या फिर आईएएस हो, और कोई भी एग्ज़ाम, इवन स्टाफ सिलेक्शंस हो। यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पहला पेपर होता है, वो जनरली एप्टीट्यूड मेजर करने के लिए, एप्टीट्यूड इवैल्यूएट करने के लिए उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको भी मालूम है, जनरल सेक्शंस उसमें होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग हो, डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट, जिसमें आपको ग्राफ्स प्रोवाइड किए जाएँगे। आप उसको एनालाइज़ कर सकते हो क्या? आप उसको डिकोड कर सकते हो क्या? ये सब चीज़ें जो है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आईक्यू एक्चुअली टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। जहाँ तक यूपीएससी का सवाल है, आप एक नाम नोट कर लेंगे। जैसे मैंने डेनियल गोलमन सर की 2 किताबें तो आपको रिकमेंड कर दी है, पर एक तीसरी किताब जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, जो अपनी भाषा में लिखी गई है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस बाय दिलीप सिंह। इन्होंने बहुत बेहतरीन, यानी छोटी-सी किताब है, पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ईक्यू का कांसेप्ट कव्हर किया हुआ है। सर और इन्होंने एक्चुअली, यस मैम? सर तुमचा व्हिडिओ नाही दिसतंय. अच्छा। माहिती नाही, ती चुकीने कदाचित बटन दाबला गेली की काय? ओके सर आता ठीक आहे. ओके कंटिन्यू. ओके मैम। तो दिलीप सिंह सर की मैं बात कर रहा था, और इन्होंने किताब भी लिखी है, और इन्होंने यूपीएससी जो है इंडिया में, उनको रिकमेंडेशन दिया था कि आप आईएएस ऑफिसर का सिर्फ आईक्यू क्यों टेस्ट कर रहे हो, आप उनका ईक्यू भी टेस्ट करिए। और इनके यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल है दिलीप सिंह सर के। अगर आपको इसमें रुचि है तो आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं, और किताब भी ई बुक के फॉर्म में भी अवेलेबल है, आप वो पढ़ सकते हैं। और किताब अच्छी है वो, मैंने 3, 4, 5 बार, मालूम नहीं कितनी बार वो पढ़ी है। पर सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने लिखने की कोशिश की है। देखिए, जहाँ तक स्कूल्स और कॉलेजेस की बात है, ये सब फोकस करते हैं आईक्यू डेवलप करने में। गेटिंग मी? तो आईक्यू जो है सिस्टमैटिक ट्रेनिंग से डेवलप किया जा सकता है। कुछ किताबों में ऐसा लिखा है, या कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि आईक्यू आईक्यू डेवलप नहीं होता है, कि जो बाय बर्थ आपको मिलता है वही रहता है। पर मेरा तजुर्बा थोड़ा और है। ओवर द पीरियड लोगों का आईक्यू इम्प्रूव होते हुए देखा है, और उसको सिस्टमैटिक ट्रेनिंग से इम्प्रूव किया जा सकता है। बात करते हैं हम लोग दूसरे इंटेलिजेंस की। आपको जस्ट याद दिला देता हूँ कि हम लोग पहले सेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं अलग-अलग टाइप के इंटेलिजेंसेस कौन से हैं। उसमें पहला हमने बात किया आईक्यू के बारे में, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ईक्यू ईक्यू के बारे में, और इस पे तो मुझे कॉम्प्रिहेंसिवली ऑब्वियसली बात करना है, पर फिर भी मैं थोड़ा-सा ब्रीफ अप कर देता हूँ ये पर्टिकुलर कांसेप्ट को यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में। अदरवाइज़ बाकी 4 सेक्शन तो इसको ही डिवोट किए गए हैं। देखिए, ईक्यू मेजर करने के लिए हम इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए हम लोग ईक्यू ये प्रमाण यूज़ करते हैं। आईक्यू ये मेजर है आपके इंटेलिजेंस का, वैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का मेजर है ईक्यू। और इसकी ना टेस्ट आती है, आपका ईक्यू कितना है। आप अगर जानना चाहते हो कि मेरा ईक्यू कितना है, मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, तो उसके लिए ना टेस्ट आती है। वो टेस्ट आप ये इंटरनेट पे भी ऑनलाइन फॉर्म में भी अवेलेबल है, और इसके ना बुकलेट्स आते हैं। नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, ये नाम से एक डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है, इनके पास ये स्टैंडर्डाइज स्केल्स मिलती है। इनकी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो, और जो साइकोलॉजी के पराग सर है, उनके पास शायद ये टेस्ट अवेलेबल भी होगी। ये छोटे से बुकलेट्स होते हैं। और साइकोलॉजी में तो बहुत सारे रिसर्च इमोशनल इंटेलिजेंस पे मैंने तो खुद देखे हुए, क्योंकि मैं पीएचडी का ट्रेनर भी हूँ, और बहुत सारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स ईक्यू मेजर करने में अपना रिसर्च करते हैं।
देखिए, जैसे मैं मेरे लेक्चर की शुरुआत में भी बोला था कि ईक्यू ये कांसेप्ट इंडिया के लिए भले ही नया हो, नया यानी अभी फिर भी 20 साल तो हो गए होंगे इसको इंडिया में आके, पर इंडिया में ये उससे पहले भी था, जिसको हम लोग एक आम आदमी की भाषा में स्मार्टनेस कहते हैं कि आप कितने स्ट्रीट स्मार्ट है। वही एक हमारा इंडिकेशन होता है कि हमारा ईक्यू लेवल कितना तगड़ा है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारी सॉफ्ट स्किल्स कैसी है, हमारे कॉम्पिटेंसेस, इमोशनल कॉम्पिटेंस बोल रहा हूँ मैं। ये कैसे ये कुछ सिनोनिमस नाम है ईक्यू के लिए और ईक्यू ये ट्रेंडी टर्म है जो फॉरेन के लोगों ने इसको ये ट्रेंडी नाम दिया हुआ है। अदरवाइज़ इंडिया में ये बहुत पहले से एग्ज़िस्ट करती थी। आपने बचपन में जितनी भी स्टोरीज़ पढ़ी होगी ना, उसमें जो हीरो था वो हमेशा उसका ईक्यू हाई रहता था। पर हम लोगों को शायद वो ईक्यू है ये, पर हम लोग ये तो जानते थे कि यार कितना स्मार्टली इसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। आप अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनते हो तो बीरबल साहब जो करते हैं हमेशा स्मार्टली कोई सिचुएशन टैकल कर लेते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रीट स्मार्ट उसका जो स्मार्टनेस है एक्चुअली वही ईक्यू का एक पर्टिकुलर पहलू आप बोल सकते हो। तो इंडिया में भले ही ये टर्म बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नई है, पर मुझे नहीं लगता। ये शायद नाम हमारे लिए नया होगा, पर ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में बहुत पहले से थी। और एक बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, आप बॉलीवुड की कोई मूवीज़ तो उसमें हीरो जो है ना, उसका ईक्यू हमेशा ही एक बेटर दिखाया गया है और इसलिए तो वो 4 लोगों से बेटर है। आप देखेंगे हीरो क्या करता है, तो यार वो 4 लोगों से कुछ तो भी अलग ऐसी चीज़ करता है, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके ही अलग होते हैं। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स तो अभी डिस्कस भी कर रहा हूँ आने वाली कुछ स्लाइड्स में। पर वो 4 लोगों से हट के इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके पास शायद ईक्यू का लेवल ज़्यादा होता है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे ता देखिए, कभी आपने सोचा है क्या कि एक पर्टिकुलर क्लास का टॉपर, है ना? आप ना थोड़ा-सा नेक्स्ट स्लाइड देखिए। आप ना थोड़ा-सा अपने स्कूल डेज़ को याद करिए और अपनी क्लासरूम को आँखों के सामने लाइए। पल भर के लिए आँख बंद कर लीजिए और स्कूल डेज़ में अपनी आँखों के सामने अपना क्लासरूम लेके आइए। लाया? ओके। अभी याद करने की कोशिश करिए कि सामने के बेंच पे कौन बैठता था और बैक बेंचर्स कौन थे आपके क्लासमेट्स? और अगर अभी उनमें से कोई आपके टच में है, तो एक बार ये जानने की कोशिश करिए कि जो क्लास के टॉपर्स थे, वो आज क्या कर रहे हैं और जो बैक बेंचर्स थे, आज वो क्या कर रहे हैं? गेटिंग मी? मैंने ये मेरे जो क्लासमेट्स थे, उनके साथ किया हुआ है। एक ना हैरान करने वाली बात मुझे सामने आई, वो ये है कि मेरे क्लास में जो क्लास का टॉपर था, वो आज विप्रो में है और सर्विस कर रहा है। अच्छा खासा सेटल्ड है, नो डाउट अबाउट दैट। और मैं तो शुरू से ही बैक बेंचर ही रहा हूँ और मेरे जो दोस्त हैं वो सब बैक बेंचर्स थे और उनको आज मैं देखता हूँ तो मोस्टली मोस्टली बैक बेंचर जो है वो बिजनेस में है और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। और उनकी ना एक पिक्यूलियर क्वालिटी मैं बता रहा हूँ आपको बैक बेंचर्स की, इनका नेटवर्क जो है ना, लोगों का नेटवर्क बहुत तगड़ा होता है और शायद इसलिए बिज़नेस में इनको सक्सेस मिल जाता है। यानी मेरा ये कॉमन ऑब्ज़र्वेशन है, यहाँ पे मैं कोई इंटरनेट की साइट रेफ़र करके नहीं आया हूँ या फिर मैं किसी बुक में ये चीज़ें लिखी हुई मैंने देखी नहीं है। मेरा जो कॉमन ऑब्ज़र्वेशन है, वो बताने की कोशिश की है। देखिए, ईक्यू ये 3 चीज़ें इंडिकेट करते हैं। आप क्लासरूम के बाहर कैसे हो और आप क्लासरूम के बाहर कितने सक्सेसफुल हो, ये ईक्यू बताता है। आप कितने रिसोर्सफुल हैं, यानी घर में अगर कोई तकलीफ आती है तो क्या वो प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर देते हो? वो भले ही मेडिकल प्रॉब्लम हो या फिर आपको घर में कोई दरवाजा टूट गया है, वो भी आप इवन कॉलेजेस में कोई छोटे फंक्शंस है तो उसमें जो रिसोर्सेस लगते हैं, क्या आप वो आसानी से जनरेट कर सकते हो? अगर आप रिसोर्सफुल है तो आपका ईक्यू बेटर है और आपका सोशल एक्सेप्टेबिलिटी और लाइकेबिलिटी, यानी लोग आपको सोसाइटी में भाव देते हैं, आप उनमें पॉपुलर हो, आप उनमें फेमस हो और वो चाहते हैं कि आप उनके संगत में रहें। अगर ऐसा कुछ है तो ऑब्वियसली आपका ईक्यू बेटर है। इससे आगे जाके भी मैं ये कहने की कोशिश करूँगा कि आप जस्ट ईक्यू आपका अच्छा है या बुरा है, ये जानने के लिए, यानी एक आदमी का ईक्यू अच्छा है या बुरा है, ये जानने के लिए आप जस्ट अपना ना एक फ्रेंड सर्कल जो है, अभी इस मोमेंट पे आपका जो भी अलग-अलग ग्रुप्स शायद हो सकते हैं, कोई भी एक ग्रुप आँखों के सामने लाइए। इफ सपोज़ 7-8 लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप में हैं, तो आप हमेशा देखेंगे ग्रुप कोई भी हो, उस ग्रुप में एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है कि वो ज़रा ज़्यादा ज़्यादा पावरफुल होता है या फिर ज़्यादा फेमस होता है, ज़्यादा पॉपुलर होता है। वो आदमी का पावर इतना ज़्यादा होता है कि आप कोई पिकनिक प्लान कर रहे हैं और इंसिडेंटली 8 लोगों का ग्रुप है और 7 लोग तैयार हो गए और ये 8वां जो बंदा है वो बोल रहा है कि यार मेरा नहीं जम पाएगा और हो सकता है कि आपकी पूरी पिकनिक ही कैंसल हो जाए। यानी वो बंदा नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा है यार। पार्टी जो है आप ठीक से एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो, उसको आप ना मिस कर रहे हो।
तो ऑब्वियसली वो जो पर्टिकुलर आदमी है ना, वो चलता फिरता पैकेज है आपके ईक्यू का। यानी एक आदमी में ईक्यू ज़्यादा है या कम है, ये जानने का एक मेरे पास जो शॉर्टकट है, वो मैं इस तरीके से आता हूँ कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में कोई एक बंदा ऐसा होता है कि जिसकी वजह से ग्रुप में मज़ा नहीं आता अगर वो नहीं रहता है तो। सो ईक्यू मेक्स समवन टू बी एबल टू मेंटेन पीस विद अदर्स। दूसरों से शांति बनाए रखने में ईक्यू हेल्प करता है। कीप टू टाइम, देन बी रिस्पॉन्सिबल, ऑनेस्ट, देन रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं शेयर कर रहा हूँ, अभी मैं जस्ट रीड आउट कर रहा हूँ इसको, पर ये कॉम्प्रिहेंसिवली मैं थोड़ी देर बाद एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, जो दिलीप सिंह सर की मैं किताब बोल रहा था, उसमें एक स्टोरी दी है। विजय की, वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, उसमें भी मैंने ये स्टोरी दी है। अजय और विजय ये दोनों दोस्त हैं और बचपन से ही इनका स्कूलिंग और कॉलेज एजुकेशन जो है वो साथ में ही हुआ। अजय जो है वो क्लास का टॉपर रहा है हमेशा ही, यानी नर्सरी से लेके उसने कभी फर्स्ट रैंक छोड़ा ही नहीं और मेरिटोरियस स्टूडेंट था 10वीं 12वीं में। उसके बाद इंजीनियरिंग किया, अच्छे खासे मार्क्स लाए, गेट वगैरह क्रैक किया और एक कंपनी में उसको जॉब लगा। यानी में उसने 10 कंपनीज में इंटरव्यू दिए और 10 कंपनी में से एक कंपनी ने उसका सिलेक्शन किया और वो जॉब पे लग गया। ऑन द अदर हैंड, विजय एक ऐसा बंदा है कि जो एकेडमिक्स में ऑर्डिनरी है। नर्सरी से लेके पीजी तक उसका एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाई में नहीं रहा है। और खास कि वो है वहाँ अच्छा आ जाता है। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उसने 10 कंपनीज में इंटरव्यू दिए और उसका 4 सिलेक्शन हुआ और उसको वहाँ पे ये डिसाइड करना था कि ये 4 में से मैं कौन सी ज्वाइन करूँ। 1 साल निकल जाता है, दोनों नौकरी पे हैं, अजय और विजय। और 1 साल बाद ये देखा जाता है कि अजय को नौकरी से निकाल दिया गया है और उसी टाइम पे विजय का प्रमोशन हो चुका है। गेटिंग मी? यानी क्या, यहाँ पे बात हो रही है अजय के पास जो है उसको हम लोग कहते हैं आईक्यू और विजय के पास जो है उसको कहते हैं हम लोग ईक्यू। चेतन भगत जी का ये कैप्शन है और ये ईक्यू को डिफाइन करता है सिंगल लाइन में। ईक्यू यानी क्या एग्जैक्टली आप अगर मुझे पूछते हो तो सिंगल लाइन डेफिनेशन: पीपल हु कम फर्स्ट इन क्लास डोंट डू द बेस्ट इन लाइफ। जैसे अजय की बात हो रही थी, पीपल हु अंडरस्टैंड पीपल देयर फील्ड एंड देमसेल्व्स टू। एज यू कैन सी, ये विजय की वाली स्टोरी है। यानी जो जो लोगों को समझते हैं और अपने साथ लेके चलते हैं वो शायद ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जिनके मार्क्स ज़्यादा है वो शायद लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यही बात हो रही है ईक्यू और आईक्यू की। देखिए, आईक्यू आया 1905 में और ईक्यू आया 1964 में और जैसे मैंने आपको बताया ईक्यू जो है पॉपुलराइज हुआ 1995 में। देखिए, 4 बिजनेस स्टालवार्ट्स हैं। आप देख सकते हैं हेनरी फोर्ड है, बाद में गौतम सिंघानिया सर है, बॉटम में इस तरफ राइट हैंड साइड में बिल गेट्स है और इस तरफ है धीरूभाई अंबानी। ये चारों बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और इन सब में एक कॉमन चीज़ थी कि इनके पास फॉर्मल एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं था। पर फिर भी आज ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में टॉप पे हैं और इनके पास शायद अगर कुछ है तो वो मुझे लगता है ईक्यू। आप देख सकते हो एप्पल के फाउंडर एमडी स्टीव जॉब्स, इनका कहना यह है कि 80% ऑफ सक्सेसफुल पीपल डोंट हैव अ कॉलेज डिग्री और उनके पास जो होता है वो शायद ईक्यू है और उसी की वजह से वो सक्सेस टेस्ट करते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की, जिसको सोशल क्वेश्चन कहते हैं। इसके डिटेल में मैं बहुत जाऊंगा नहीं क्योंकि एसक्यू जो है ये ईक्यू का ही एक पर्टिकुलर पार्ट है। ईक्यू को 2 सेक्शंस है जो हम लोग आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे और एसक्यू जो है वो ईक्यू का ही एक पार्ट है। और जैसे आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, दिस इज द मेजर ऑफ योर एबिलिटी टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स। आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने के काम में आपका ईक्यू आता है, आपका सोशल एक्सेप्टेंस, सोशल लाइकेबिलिटी, आपके रिलेशनशिप्स प्रॉस्पर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो काम में आता है वो क्वेश्चन जो है जिसको हम लोग सोशल क्वेश्चन कहते हैं। देखिए, समरी अभी तक ये जो 3 मेजर्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू, इसको एक-एक लाइन में मैं समराइज कर रहा हूँ। पहला जो पार्ट है आईक्यू, इट रिप्रेजेंट्स योर माइंड पावर, आपका इंटेलिजेंस कितना है। ईक्यू रिप्रेजेंट्स योर कैरेक्टर और एसक्यू आपकी पॉपुलैरिटी, आपका फेम इंडिकेट करता है। और चौथी जो चीज़ है, ये तीनों के बाद चौथा जो रिसेंटली आया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं एक्यू। एक्यू का लॉन्ग फॉर्म है एडवर्सिटी क्वोशंट और ये किताब का नाम भी आप नोट करके रख सकते हैं, अच्छी किताब है। और ये थोड़ा सा कंसेप्ट नया है एडवर्सिटी क्वोशंट, और आपको भी मालूम है कि अच्छे अच्छे लोग आज डिप्रेशन में सुसाइड कर रहे हैं एंड ऑल, और वो जो कारण होता है वो है एडवर्सिटी क्वोशंट। जानने की कोशिश करते हैं एडवर्सिटी क्वोशंट क्या है, एक लाइन में बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि फोकस जो है वो हम लोगों को ईक्यू पे ज्यादा करना है। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ आपको।
और ये मैंने बहुत मेहनत करके तैयार किया है। इंडिया में 12 लोग सुसाइड करते हैं रोज़ और उसका कारण है कि उसका उनका लव अफेयर जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा, उनका ब्रेकअप हो चुका है। देखिए आँकड़ा बहुत बड़ा है हाँ। इंडिया में रोज़ 12 लोग फेल्योर इन लव की वजह से रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। इंडिया में 7 लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा है और उनकी शादी सक्सेसफुल ना होने की वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं। यानी में फिर से आंकड़ा गहरा है। 7 ऐसे लोग रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं जिनकी शादी हुई है और अपने लाइफ पार्टनर के साथ उनका जम नहीं रहा है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेट होके वो आत्महत्या कर रहे हैं। तीसरी बात, इंडिया में 5 लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, ये जो सुसाइडल टेंडेंसीज़ है, ये इंक्रीज़ हो रही है। मेरे पास तो और एक स्टैटिस्टिक्स है, वो जो शायद बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। हाल ही में आप देखेंगे कि जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स है, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स रादर, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स ये ऐसे लोग हैं जो पढ़े-लिखे हैं और सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व्ड हैं। और मुझे लगता है कि रिसेंट अगर केसेस हम लोग देखते हैं, तो उसमें एक बड़ी केस जो मुझे अभी याद आ रही है इस मोमेंट पे, वो है आरुषि तलवार की जो केस थी। आरुषि का मर्डर हुआ था और उसके मम्मी और डैडी वो दोनों डॉक्टर थे, यानी हाई प्रोफाइल थे, व्हाइट कॉलर्स थे और मुझे मालूम नहीं उसके रिज़ल्ट्स क्या आए, पर जो मैंने पेपर्स में वगैरह पढ़ा है कि उसके मम्मी-डैडी उसमें इन्वॉल्व थे, ऐसा कुछ मैंने मेरे पढ़ने में है। यानी क्या आज आप देखेंगे कि व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स की संख्या जो है, वो ड्रास्टिकली बढ़ रही है। आज आप देखेंगे 100 क्राइम अगर आप कंसिडर करते हैं, तो 100 में से 16 क्राइम्स ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स की क्रेडिट में चाहते हैं। यानी 100 में से 16 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, सेटल्ड है, सक्सेसफुल है और क्राइम में इन्वॉल्व्ड है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इनका ईक्यू कम होता है या फिर इनका एडवर्सिटी क्वोटिएंट भी कम होता है। एडवर्सिटीज़ आपको मालूम है कि कुछ ऐसी घटनाएँ जो आपके आपके मन मुताबिक नहीं होती है, आप सिचुएशन जो है वो ठीक से आपके फ़ेवर में नहीं है, जिसको हम लोग एडवर्सिटी यानी एक एक बैड पैच लाइफ़ का जिसको हम लोग एडवर्सिटी कहते हैं। और इसको आप कैसे सक्सेसफुली टैकल करते हो, उसका जो मेजर है उसको हम लोग ईक्यू कहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर सेटबैक से कैसे रिकवर होते हो, उसको और उसमें आपकी एबिलिटी है क्या? वो मेजर करने का जो मेजर है दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज़ ईक्यू। आप देखेंगे स्क्रीन पे 4 बड़े सेलिब्रिटीज़ दिख रहे हैं और आपको सुन के शायद ताज्जुब होगा कि ये 4 बड़े सेलिब्रिटीज़ धर्मेंद्र, शाहरुख खान, वरुण धवन और दीपिका पादुकोण हैं। इनकी लाइफ में एक बुरा पैच आया था और ये लोग डिप्रेशन में थे और आज ये सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज़ की कैटेगरी में है। यानी क्या ऑब्वियसली इनका एक्यू जो है वो बहुत तगड़ा है और बहुत सारे लोग तो एडवर्सिटीज़ को सस्टेन ही नहीं कर पाते हैं, दे कमिट सुसाइड्स एंड ऑल और उसकी वजह एक ही है कि एक्यू कम है। आज भी मैं सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो एक बच्ची आज की न्यूज़ आप देख सकते हो कि एक बच्ची को डॉक्टर होना था, उसका रिज़ल्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उसने सुसाइड कर लिया। तो आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे हो तो लाइफ खत्म नहीं हो जाती ना बॉस। गेटिंग मी सो मेनी ऑप्शंस आर देयर बट दैट मेंटल मैच्योरिटी इज पॉसिबली मिसिंग और ये चीज़ जो है ये हम लोगों को ऐसी सिचुएशंस को कैसे टैकल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, शायद ये हम लोगों को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। और इसी की वजह से जब ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो ऑब्वियसली आप वो सिचुएशन को टैकल नहीं कर सकते हो। मैं जो कॉलेज में हूँ, सीपीएन बरा कॉलेज, हमारी प्रीमाइसेस में स्कूल है। आपको सुन के शायद ताज्जुब होगा कि हमारे स्कूल की एक बच्ची थी कि जिसको यूनिफ़ॉर्म नहीं मिला, उसकी वज़ह से उसने सुसाइड कर लिया था। गेटिंग मी? यानी इतनी छोटी वज़ह से आप इतना डिप्रेस हो जाते हो, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आप इतने एक्सट्रीम्स तक जा रहे हो बॉस। तो समहाउ समथिंग इज़ मिसिंग बॉस। सेक्शन 2 में जा रहे हैं क्विकली और यहाँ से हम लोग आगे चर्चा करेंगे कोर इमोशनल इंटेलिजेंस की। ओके? सो यहाँ पे मैं 10 पहलू बता रहा हूँ आपको, 10 फैसेट्स आप बोलिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? तो मैं 10 मतलब या 10 डेफिनेशंस या 10 मीनिंग्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक-एक करके शुरुआत करते हैं। बात करते हैं इमोशन की। देखिए, इमोशन इज़ एनी डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कि माइंड जब डिस्टर्ब हो जाता है तो कोई ना कोई इमोशन जो है वो इमिट होती है हमारे ब्रेन से एंड इट इज़ बेसिकली अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड यू कैन से। देखिए इमोशंस के बेसिकली ये 7 प्रकार है। आप अगर डेनियल गोलमन सर की किताब पढ़ते हो तो उसमें इमोशंस के 7 प्रकार उन्होंने बताए हैं एज़ यू कैन सी। यानी ये फ्लेवर्स है इमोशन के जो डेली लाइफ में हम लोग एग्ज़िबिट करते हैं जिसमें एंगर हो, फ़ियर हो, एन्जॉयमेंट हो, लव, सरप्राइज़, डिसगस्ट यानी थिटकारा जिसको हम लोग कहते हैं या फिर शेम, लज्जा। ये 7 बेसिक फ्लेवर्स है इमोशंस के और डेली लाइफ में हम लोग कहीं न कहीं, किसी न किसी सिचुएशन में
ये पर्टिकुलर इमोशंस को इमिट करते हैं या एग्ज़िबिट करते हैं। मज़े की बात तो आगे आती है। हर एक हर एक इमोशन जो है उसके फ्लेवर्स है, उसकी छटाएँ हैं। जैसे आप देख सकते हो ये एंगर की इतनी सारी छटाएँ हैं। गेटिंग मी? टोटल ना आप अगर सोचेंगे तो एक दिन में 24 घंटे में हम लोग लगभग 150 प्रकार की इमोशंस को इमिट करते हैं। यू वोंट जस्ट सिंपली बिलीव इट। गेटिंग मी? 150 प्रकार के इमोशंस है और वो अलग-अलग सिचुएशन में हम लोग इमिट करते हैं। आप जैसे देख रहे हो कि ये एंगर की छटाएँ है, यानी गुस्सा थोड़ा कम आना, जैसे गुस्सा कम है तो ऑब्वियसली बातचीत बंद वाइब से। गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो फिर हाथ में जो है वो फेंक के मारना। यानी क्या कोई भी इमोशन हो उसकी छटाएँ हो सकती हैं। जैसे आप देख सकते हो, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये टेक्निकल बातें हैं, मुझे तो बस कांसेप्ट समझाना है। पर यहाँ पे बताने की ये कोशिश हो रही है कि 7 बेसिक इमोशंस के प्रकार होते हैं और हर इमोशन की अपनी कुछ छटाएँ हैं। जैसे आप सिंपल एक इमोशन एंगर देखते हो तो इतनी सारी छटाएँ हैं और ये हम लोग अलग-अलग मोमेंट पे कहीं न कहीं इमिट करते हैं। देखिए ये सैडनेस, दुखी होने के प्रकार, आप देख सकते हो ये डिप्रेशन वगैरह जो है ये डिस्पेयर या डिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन ये सब सैडनेस का ही एक छटा आप बोल सकते हैं इसको। उसके बाद तीसरा फ़ियर, डर, कम लगना, ज़्यादा लगना या जैसे आज मेरा ये प्रेज़ेंटेशन है, मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली शुरू में कितना भी बड़ा स्पीकर क्यों ना हो, वो पहले 2-3 सेकंड के लिए डिस्टर्ब रहता ही है, नर्वस रहता ही है और इमोशनल इंटेलिजेंस वही बात करता है कि आप ये नर्वसनेस को कैसे टैकल करते हो। जैसे आज मैंने जब ये वेबिनार शुरू किया तो ऑब्वियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने 1000 वर्कशॉप्स लिए हुए हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस पे शायद 50 हो गए हैं मेरे और आज 51वां शायद है मेरा, पर आज मैं उतना ही डिस्टर्ब था सवेरे, उतना ही मैं एंग्ज़ियस था, एंग्ज़ायटी लेवल थी, नर्वसनेस था, पर वो नर्वसनेस पे आप कैसे कंट्रोल करते हो दैट इज़ व्हाट ईक्यू इज़ बेसिकली। अगर मैं नर्वस हो गया और मैं ऑब्वियसली उसके पकड़ में चला गया, तो ऑब्वियसली मेरा दिमाग ब्लाइंड हो जाएगा और मैं ऑब्वियसली मुझे जो बात करनी है, वो मैं कर नहीं पाऊँगा। यानी क्या आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अगर कम है तो आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। यानी में सिंपल नर्वसनेस की भी अगर बात करते हैं तो हर एक का नर्वसनेस को ही टैकल करने का तरीका अलग होता है। आप अपने ही खुद के एग्जांपल्स ले लीजिए। लाइफ जब पहली बार आपने लेक्चर दिया होगा तो किसी मोमेंट पे हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं। गेटिंग मी? अच्छा खासा लेक्चर चल रहा है और ऑल ऑफ अ सडन हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं। इवन क्लासरूम में भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि अच्छा खासा चल रहा है यार, 20-25 मिनट हो गए बात करके और अचानक से एक मोमेंट ऐसा आ जाता है कि हम लोग पूरे भूल जाते हैं, टोटली ब्लैंक। और वो कारण है कि आपका नर्वसनेस आपके परफॉर्मेंस पे हावी हो गया है। आपको जो करना है वो गोल कहीं और रह गया और आपके नर्वसनेस ने उसकी जगह ले ली। यानी क्या आपका ईक्यू अगर कम है तो ऑब्वियसली और आप अगर आपके इमोशंस को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम है। एन्जॉयमेंट की इतनी सारी छटाएँ हैं। एक जस्ट सिंपल एग्ज़ाम्पल मुझे अभी याद आ रहा है, एन्जॉयमेंट जिसको हैप्पीनेस, जॉय, रिलीफ़, कंटेनमेंट वगैरह कहते हैं। देखिए एक एग्ज़ाम्पल आप यूट्यूब पे भी इसको फ़ॉलो कर सकते हो। आपको मालूम है कि ऑस्कर अवार्ड्स जो दुनिया के सबसे बेहतरीन अवार्ड्स होते हैं और सभी जो सेलिब्रिटीज़ या एक्टर्स हैं उनका एक ड्रीम होता है कि यार मुझे ऑस्कर मिले। तो एक ऑस्कर फंक्शन चल रहा था। आप ना यूट्यूब की सर्च विंडो में जाएँगे और वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस नाम से कमांड दे देंगे तो ये वीडियो आ जाएगा। यानी में जो मैं अभी नरेट कर रहा हूँ, उसमें ऑस्कर के अवार्ड्स चल रहे हैं और ऑब्वियसली स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ है और वो जो लेडी है सेंटर में जो एंकर है बेसिकली, वो अनाउंस करती है कि द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज़ टू और एक नाम आता है, मुझे वो नाम अभी याद नहीं है। वो नाम आता है और वो बंदा उस पर्टिकुलर स्टेडियम में कहीं पीछे बैठा हुआ है। जैसे वो अपना नाम सुनता है ना, उसको इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है कि उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ? आप वो वीडियो में देखेंगे कि वो इतना खुश हो जाता है जिसको एक्सल्ट कहते हैं। खुशी इतनी ज़्यादा परे हो जाती है कि उसको वो क्या करता है जहाँ कहीं भी बैठा है एक्चुअली सेंटर में कहीं बीच में ऐसा है और वहाँ से वो जब स्टेज की तरफ आता है अवार्ड लेने के लिए तो बेसिकली वो जो बीच में पैसेज होता है ना, वो पैसेज यूज़ ना करते हुए लोग जो बैठे हैं चेयर्स पे उनके सर पे, उनके बदन पे पैर रख-रख के कूद-कूद के वो स्टेडियम तक जाता है, वहाँ पे स्टेज तक जाता है और वहाँ पे जाके भी वो रुकता नहीं है, उसका हू-हा, हू-हू, नाचना, डांस वो खत्म ही नहीं हो रहा है। यानी क्या ऑब्वियसली आपकी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपको ऑस्कर मिला हुआ है, पर आप ये इमोशंस को अगर ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो शायद ये ऐसी चर्चा हो जाती है और ऑब्वियसली दूसरे दिन फिर हर बड़े न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ नहीं आई थी कि उसको अवार्ड अवार्ड मिला। उसने क्या तमाशे किए वहाँ पे, उसकी ज़्यादा चर्चा हुई। गेटिंग मी?
So this is what low emotional intelligence can do for you, and you should control your emotions and you should regulate your emotions. लव की छटाई, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात कर रहा हूँ. सरप्राइज, डिस्गस्ट जिसको तिटकारा कहते हैं हम लोग, बाद में शेम. देखिए इमोशंस के बेसिकली दो प्रकार हैं, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस. पॉजिटिव इमोशंस हमारे लिए अच्छी होती है, जैसे हम लोग खुश है तो ऑब्वियसली वी आर एमिटिंग पॉजिटिव इमोशन. हम दुखी है, हम नर्वस है तो ऑब्वियसली हम लोग बात कर रहे हैं नेगेटिव इमोशन की. देखिए आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि एक दिन में हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं. क्या आपने सोचा है कभी? एक दिन में 24 घंटे में हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं. और मजे की बात तो ये है कि इसमें से लगभग 60 से 70% थॉट्स जो है वो नेगेटिव होते हैं. सिंपल सी बात, आप कॉलेज की तरफ जा रहे हैं तो आप, यार गाड़ी तो पंक्चर नहीं होगी, यार रेड सिग्नल तो नहीं मिलेगा. बातें जो है ना वो ऐसे ही इरप्ट होती है माइंड में. गेटिंग में? यानी क्या, नेगेटिव इमोशंस ज्यादा हावी होती है हम लोगों के थॉट्स में, यू कैन से. एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं नेपोलियन सर का. नेपोलियन आपको मालूम है दुनिया जीतने चला था और हर एक टापू पे वो जाता था और उसको कॉन्कर करता था. और ऐसा ही एक किस्सा हुआ कि वो अपनी ट्रूप के साथ जहाज से एक पर्टिकुलर छोटे देश में गया और उसको वो पर्टिकुलर देश को काबू में लाना था या उसको कॉन्कर करना था. तो ऑब्वियसली हुआ क्या, उस वक्त वो जब सी शोर पे आए, किनारे पे जब आए, तो वो उतर रहे थे. तो ऑब्वियसली नेपोलियन साहब पहले उतरेंगे और बाद में उनके जो ट्रूप मेंबर्स है वो उतरेंगे. तो नेपोलियन साहब उतरते उतरते गिर गए. यही में अभी उनके जो सहकारी है उन्होंने नेपोलियन साहब को कहा कि साहब ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपने इस धरती पे पैर रखते ही आप गिर गए, तो मुझे नहीं लगता सर यहाँ पे कुछ हो पाएगा और मुझे लगता है शायद कुछ बुरा होगा. यही में नेपोलियन साहब ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया? आप ऐसा क्यों सोच रहे हो भाई, ये धरती ये धरती पे पैर रखने के बाद ही अगर मैं गिर गया हूँ तो ऑब्वियसली ये इंडिकेशन है कि यहाँ की धरती माँ मुझे बोल रही है, आजा बेटा, मैं तुझे गले लगा रही हूँ और ये देश भी तेरा ही है. यानी देखिए सिचुएशन एक ही है पर दो अलग अलग प्रकार के लोग उसी सिचुएशन को अलग अलग देख रहे हो. EQ हाई होता है ना, वो बेसिकली एक निगेटिव चीज में अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करता है. मेरा पहला डेफिनेशन जो इमोशनल इंटेलिजेंस का, फाइटिंग विथ नेगेटिव थॉट्स इज कंसीडर्ड एज EQ. कि आप नेगेटिव इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो, कैसे रेगुलेट करते हो. अगर ये स्किल आपके पास है तो ऑब्वियसली आपके पास EQ है. सो फर्स्ट डेफिनेशन या पहला पहलू जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का मेरे हिसाब से फाइटिंग विथ नेगेटिव थॉट्स. ठीक है, सिंपल सा मैंने चैट बॉक्स ओपन रखा है, आप थोड़ा जवाब देना इसमें. एक सिचुएशन मैं बता रहा हूँ आपको, ये बड़ी फेमस केस है, ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. इसका नाम है ट्रेन ट्रैक एंड चिल्ड्रन. ये एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन है EQ का एक्सप्लेनेशन देने के लिए. मैं एक सिचुएशन नरेट कर रहा हूँ. देखिए दो ट्रेन के ट्रैक्स है, एक लाइव ट्रैक है और एक डेड ट्रैक है. यानी लाइव का मतलब है कि यहाँ पे रेगुलरली ट्रेन आती है और जाती है, और डेड का मतलब ये है कि वो ट्रैक जो है वो यूज में नहीं है, वहां पे ट्रेन आने की कोई संभावना नहीं है. यानी में अभी जो लाइव ट्रैक है वो ट्रैक पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, लगभग 12 से 15 बच्चे वो लाइव ट्रैक पे खेल रहे हैं, और एक बच्चा जो है वो डेड ट्रैक पे खेल रहा है. यानी में अभी आप भी वहीं पे खड़े हैं और आपको दिखता है कि दूर से ट्रेन आ रही है. यानी में और आपका ध्यान दोनों तरफ है कि यार यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और ट्रेन आ रही है. मेरा सवाल ये है कि आप ना वो जो नॉब इंटरचेंज जो होता है ना, नॉब इंटरचेंज का मतलब ये है कि वो ट्रैक यानी रेल का ट्रैक आप चेंज कर सकते हो, और वो जो एक नॉब होता है वो नॉब के पास आप खड़े हैं. मेरा सवाल ये है कि आप वो ट्रेन का रूट चेंज कर देंगे क्या? ऑब्वियसली वो ट्रेन तो लाइव ट्रैक पे आएगी जहाँ पे 15 से 20 बच्चे खेल रहे हैं गाड़ी में, और डेड ट्रैक पे सिर्फ एक बच्चा है. तो वो आती हुई ट्रेन को क्या आप उसका रूट या उसका ट्रैक चेंज कर देंगे, उसका कोर्स जो है वो चेंज कर देंगे? आप प्लीज चैट बॉक्स में येस नो लिखेंगे. अभी तक एक भी जवाब नहीं आया. यस यस नो कुछ भी लिख सकते हैं आप क्या? नो, एक तो दिखा मुझे. यस नो यस नो यस 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 यस
नो नो यस ओके ओके, जैसे मैं देख पा रहा हूँ एस बी किशोर सर ने कमेंट किया हुआ है, यू शुड आस्क ऑल द स्टूडेंट्स गेट आउट फ्रॉम लाइव ट्रैक। अच्छा ठीक है, इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देखिए मुझे अभी जो मैंने चैट बॉक्स में देखे हैं, मुझे इक्वल नंबर ऑफ यस और इक्वल नंबर ऑफ नो दिखे। यही में देखिए वो जो बच्चे हैं वहाँ तक हम लोग उनको हटा तो नहीं सकते, हम लोग वो नॉब के पास खड़े हैं, हमको या एक तो वो ट्रेन का रूट चेंज करना है या नहीं करना, ये दो ही ऑप्शन हमारे पास है। अभी इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने नो बोला है उनके पहले बात करते हैं, या पहले जिन्होंने हाँ बोला है कि ट्रेन का हम लोग रूट जो है वो चेंज कर देंगे और उसको लाइव ट्रैक से डेड ट्रैक पे डाल देंगे। इससे होगा क्या, डेड ट्रैक पे जो एक बच्चा खेल रहा है वो तो फॉर श्योर मरेगा। गेटिंग में? अभी अगर आप वो ट्रेन का रूट चेंज नहीं करते हो तो ऑब्वियसली 15 से 20 बच्चों की जान जाएगी। एनालिसिस इसका ये है, इसमें जो ये जो पर्टिकुलर केस अवेलेबल है उसके बुकलेट में इसका आंसर भी दिया गया है। वो आंसर में ये कहा गया है कि अगर आप ट्रेन का कोर्स अगर चेंज कर देते हो तो ऑब्वियसली वो एक बच्चे का मरना तय है, और उससे भी बड़ी बात, वो तो डेड ट्रैक है। वो जो ट्रेन है वो मालूम नहीं आगे जाके कहाँ पे जाएगी, वो किसको टकराएगी, और उसकी वजह से ट्रेन में जो 4000 लोग हैं उनकी जान शायद खतरे में आ जाएंगी। गेटिंग में? यानी क्या, एक बच्चा जो ऑब्वियसली निर्धास्त है, उसको मालूम है कि यार नो वे, ट्रेन तो यहाँ पे आने से रही क्योंकि ये डेड ट्रैक है, तो ऑब्वियसली उसकी गलती नहीं है, फिर भी वो मरने जा रहा है, और उसके साथ साथ पैसेंजर्स जो है ऑन बोर्ड उनकी लाइफ भी थ्रेट में आ जाएगी। और अगर आप ट्रेन का रूट चेंज नहीं करते और लाइव ट्रैक पे उसको जाने देते हो तो ऑब्वियसली बच्चों को थोड़ी नजदीक जाने के बाद तो दिखेगी, ड्राइवर जो है वो हॉकिंग कर लेगा, और कैसे ना कैसे, क्योंकि वो बच्चे लाइव ट्रैक पे खेल रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो थोड़े अलर्ट रहे। तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर बुकलेट जो है ना उसमें ये लिखा गया है कि जो लोग बोल रहे हैं कि ट्रेन का ट्रैक चेंज कर लेना चाहिए, ओके, वो थोड़े से उन पे इमोशंस जो है वो हावी हो गए हैं और वो रैशनल डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। रैशनल का मतलब है समझदारी वाले। और जिन्होंने ट्रैक नहीं चेंज करने के लिए बोला है तो उन लोगों का ईक्यू ज्यादा होता है, ऐसा वो बुकलेट में लिखा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये और एक फेमस एक्सपेरिमेंट है मार्शमेलो, आप थोड़ा गूगल कर लेंगे इसको, इसके डिटेल अगर आपको चाहिए तो, और खास करके साइकोलॉजी के सर हैं, उनको ये एक्सपेरिमेंट शायद मालूम होगा। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ। इसको मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट कहते हैं। पहले बात करते हैं मार्शमेलो। हम लोगों के भाषा में मार्शमेलो यानी ये चॉकलेट जैसा ही समझ लो आप, एक चॉकलेट जैसा हो सकता है, चॉकलेट है। और ये रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट हुआ है, हाँ, और इसके यूट्यूब पे वीडियोस भी आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा ब्रीफ अप कर देता हूँ। मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हो, दो बच्चे बैठे हैं और उनकी एक मेंटर है या सुपरवाइजर आप बोल सकते हो कि जो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाली है। अभी ये जो लेडी दिख रही है पिक्चर में, इसने ये दोनों बच्चों को चॉकलेट्स यानी मार्शमेलोज दे दिए, दो दो दे दिए दोनों को, और उनको बोला कि मैं अभी 1 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, और आप अगर ये मार्शमेलो आपको जो दो दो दिए हुए हैं, ये अगर आप नहीं खाते हो तो 1 घंटे के बाद मैं जब वापस आऊंगी तो आपको डबल दूंगी, यानी 2 के 4 हो जाएंगे। यानी में, और इतना कह के वो निकल जाती है और 1 घंटे के बाद वापस आती है। अभी ये जो दो बच्चे हैं, इसमें जो लड़की दिख रही है ना, वो लड़की सस्टेन नहीं कर पाती। वो एक्चुअली लड़के को बोलती कि टीचर तो है नहीं, चलना खा लेते हैं यार, क्या वेट करना है, 4 की जगह 2 ही है तो क्या होता है, खा लेते ना। और वो लड़की जो है वो दोनों खा लेती है, और लड़का जो है वो मार्शमेलो नहीं खाता है, क्योंकि उसमें उसको डील दिख रहा है कि यार 1 घंटा मैं अगर कंट्रोल कर लूंगा मेरे हंगर को या मेरे टेम्पटेशन को तो शायद मेरा फायदा 2 गुना हो जाएगा। और वो बच्चा सही में वो मार्शमेलो नहीं खाता है, और टीचर आने के बाद उसको डबल देती है और बच्ची को नहीं देती है। ये एक्सपेरिमेंट ना यहाँ पे खत्म नहीं होता। एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे बच्चों पे एडमिनिस्टर हुआ है, और इन बच्चों को ना ओवर द पीरियड ऑब्जर्व किया गया है। ये बच्चे जब बड़े हुए ना, तब ये जानने की कोशिश की है कि ये लाइफ में कर क्या रहे हैं। और ये एक्सपेरिमेंट से, ये रिसर्च स्टडी था एक्चुअली, ये रिसर्च स्टडी से ये पता चला कि जो बच्चे अपने ग्रेटिफिकेशन को, अपनी लालच, अपने टेम्पटेशन को ठीक से कंट्रोल पाए थे उस वक्त वो एक्सपेरिमेंट में, आज वो जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। आप थोड़े से डिटेल्स ले सकते हो गूगल में से, पर इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके ये बहुत ही बड़ा एक एक्सपेरिमेंटेशन रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है।
और एक एग्जाम्पल साइट कर रहा हूँ मैं, पिछले साल की बात है, आपको शायद याद होगा। ये बात है सूरत की, गिरमी, जहाँ पे एक प्राइवेट कोचिंग क्लास को, आपके स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहा है, ये प्राइवेट कोचिंग क्लास था और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये ट्यूशन क्लास हो रहे थे सेकंड फ्लोर पे। ओके, और आपने शायद ये न्यूज़ में भी पढ़ा होगा या फिर न्यूज़ में देखा भी होगा, और ये न्यूज़ में ये बिल्डिंग को ना आग लगी थी, और ये बिल्डिंग में आग लगने की वजह से 20 बच्चे जो है वो मर गए थे। ये स्टोरी जो है ना, ये आधी है। एक्चुअली ये 20 बच्चे जो मरे थे ना, ये आग की वजह से नहीं मरे थे। ये मरे थे, उन्होंने वो जो सेकंड फ्लोर है ना, वहाँ से जंप किया था नीचे बचने के लिए, और उसकी वजह से वो मरे थे। उसकी और एक डार्कर साइड बताता हूँ मैं आपको। इसमें 3 बच्चे ऐसे थे कि जो वहीं पे थे, क्लासरूम में ही थे, और वो बच गए। यानी क्या, ये बच्चे हो गए थे पैनिक, जो मर गए ना, यानी जो कूदे वहाँ से, जिन्होंने वहाँ से छलांग लगाई, उसकी वजह से वो मरे। एक्चुअली ये जो बच्चे थे, ये हो गए थे पैनिक। उनको समझ में नहीं आया, सिचुएशन जो है वो टैकल करना नहीं जमा, और वो कुछ ना सूझने की वजह से वहाँ से उसने जंप की और उनकी लाइफ सैक्रिफाइस हो गई। एक्चुअली 3 बच्चे जो थे वहाँ पे क्लासरूम में, उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने अपने टीचर को ढूँढा कि वो कहाँ पे हैं, पूरे पूरे फ्लोर पे। उनको ढूँढा और उनके साथ रहे। इसके बाद ये पर्टिकुलर न्यूज़ का जब एनालिसिस हो रहा था, उसमें एक तथ्य सामने आया कि ये बच्चे पूरे के पूरे जहाँ थे, वो सबसे सेफ जगह थी ये पूरी बिल्डिंग में। यानी में जो क्लासरूम में थे, वो सबसे सेफ जगह थी। वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं होने वाला था, पर ये 20 बच्चों ने छलांग मारी, क्योंकि उनको वो सिचुएशन को समझ नहीं आई, और उसकी वजह से, इमैच्योरिटी की वजह से, या आप एक्सपोज़र कम होने की वजह से बोलिए, वो सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाए। पर वो 3 बच्चे जो है, उन्होंने सिचुएशन को ठीक से रीड कर लिया, और एक ही सिचुएशन को 2 अलग ग्रुप्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अलग-अलग तरीके से। जो 20 बच्चों ने जान दी ना, उनको शायद एडवर्सिटी कोशंट उनका कम था। उनको मालूम ही नहीं कि ऐसे सिचुएशन को टैकल कैसे करते हैं, और इंसिडेंटली ये सब चीज़ें हमारे किसी भी स्कूल के करिकुलम में नहीं पढ़ाई जाती है, ये आपको खुद ही डेवलप करना होता है। हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के दूसरे पहलू की बात कर रहे हैं। मैं 10 डेफिनेशंस दे रहा हूँ आपको। पहली डेफिनेशन हो गई हमारी कंट्रोलिंग नेगेटिव थॉट्स। दूसरे डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। हमारे माइंड के 2 कप्पे होते हैं। एक होता है रैशनल माइंड। रैशनल का मतलब है समझदारी वाला। ये एक माइंड है, जैसे आप देख रहे हो 2 कप्पे हैं यहाँ पे। ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट राइट मुझे वो नहीं मालूम टेक्निकली, पर एक कप्पा जो है वो ना लॉजिकल डिसीजंस लेता है, वो प्लानिंग करता है, डिसीजंस लेता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। हम लोग जो लर्निंग करते हैं, आप अभी जो मुझे सुन रहे हो ना, और जो ग्रास्पिंग कर रहे हो, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हम लोग रैशनल माइंड से हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। वो जो माइंड है उसको हम लोग रैशनल माइंड कहते हैं। और दूसरा जो माइंड है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इमोशन। जैसे मैंने 7 बेसिक इमोशंस बताई, वो इमिट होती है हमारी ब्रेन के दूसरे कप्पे से। अभी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी क्या, ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बता रहा हूँ। आपके जो 2 माइंड्स है, रैशनल माइंड और आपका इमोशन वाला माइंड, जिसको हम लोग थिंकिंग पार्ट और फीलिंग पार्ट कहते हैं, ये दोनों की जब दोस्ती हो जाती है, तब इमोशनल इंटेलिजेंस सामने आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस की दूसरी डेफिनेशन ये है, हार्मोनियस कंपैटिबिलिटी बिटवीन दिस 2 माइंड्स। यानी डिसीजन लेते वक्त कोई भी एक माइंड हावी नहीं होना चाहिए। यानी में जैसे वो जो स्कूल के ट्यूशन क्लास के बच्चों की जो बात हो रही थी, जो बच्चों ने जंप किए उन पे निगेटिव इमोशंस हावी हो गए, और रैशनल यानी सत्सद विवेक बुद्धि जिसको हम लोग कहते हैं, वो यूज नहीं कर पाए। जो 3 बच्चों ने यूज किया, उन्होंने क्या किया, पैनिक में ना जाते हुए उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं और ये सिचुएशन को कैसे टैकल करूं। जब ये दोनों चीजें साथ में जाती है, आपका थिंकिंग और फीलिंग, उस वक्त हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो ये दूसरी डेफिनेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस की। मैं देखता हूँ ये वीडियो रन हो रहा है क्या? यू जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो। 1 minute please. Time, thank you. Could you all please put down your pens and bring your papers to the front of the room? Thank you. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, I'm sorry, you're too late. Gave you plenty of warnings about time. You failed. Sorry. Excuse me, do you know who I am? I had absolutely no idea. Good.
आपने ये सीन कौन सी हिंदी मूवी में देखा है? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ, चैट बॉक्स में आंसर करिए। आपने ये सिमिलर सीन बॉलीवुड के किसी मूवी में देखा होगा? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस, 3 इडियट्स, करेक्ट करेक्ट, सबने सही जवाब दिया है। और ऐसा कहते हैं कि ये ओरिजिनल सीन था और 3 इडियट्स में उसका रीमेक बनाया था। पार्ट अपार्ट आप देख रहे हैं कि वहाँ पे सिचुएशन को टैकल किया गया है। वो प्रोफेसर उसको बोल रहा है कि आप फेल हो चुके हो और उसने वही वो सिचुएशन को स्मार्टली टैकल करके वो पर्टिकुलर सिचुएशन का जो सीरियसनेस था उसको कम कर दिया। हम लोग तीसरी डेफिनेशन में जा रहे हैं। तीसरी डेफिनेशन ये कहती है कि ईक्यू इज मैनेजिंग योर इमोशंस इन एन इंटेलिजेंट वे, और ये मेरी सबसे फेवरेट डेफिनेशन है। इमोशनल इंटेलिजेंस में 2 टर्म्स है, एक है इमोशंस और दूसरा है इंटेलिजेंस। आप अपने इमोशंस को इंटेलिजेंटली कैसे मैनेज करते हो, दैट इज व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज। आप स्क्रीन पे देख रहे हो अमिताभ का ये पिक्चर दिख रहा है, आप इसे कोई बता सकता है ये कौन से मूवी का है सीन? योर आंसर्स प्लीज। अमिताभ का ये रूप कौन से मूवी में देखा था आपने? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। याद आ रहा है किसी को? सर हाँ, हेलो हेलो, ओके। ये काला पत्थर का सीन है, ये नरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप में से काला पत्थर कितने लोगों ने देखी है अमिताभ की? वेल, ये काला पत्थर का जो क्लाइमैक्स है उस वक्त अमिताभ जो करता है वो नरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कहते हैं कि काला पत्थर जो मूवी थी ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड थी। यश चोपड़ा की ये मूवी थी और 19 कुछ 70s की बात है कि एक माइन में कुछ हादसा हुआ था, उसको इंस्पायर होके यश चोपड़ा साहब ने मूवी बनाई थी काला पत्थर। उसमें ना ये एक्चुअली माइन पे, कोल माइन पे बेस्ड स्टोरी है और इसकी क्लाइमैक्स में ऐसा दिखाया गया है कि अमिताभ और उसके कुछ सहकारी, एक 5-6 सहकारी होते हैं, वो माइन में फंस जाते हैं अंदर और वो माइन में पानी भरना शुरू हो जाता है कि वो माइन में पानी घुस जाता है और वो धीरे 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 पानी की लेवल बढ़ती जाती है और एक ऐसा मोमेंट आता है कि ये अमिताभ और उसके सहकारी जो है वो एक जगह एंटेंगल यानी फंस जाते हैं और उनके लिए वे आउट ही नहीं रहता है कि वो वहां से बाहर कैसे निकले, क्योंकि वहां पे ना उनके रास्ते में एक कोयले का बड़ा पत्थर गिर जाता है और जिसकी वजह से वो रोड जो है वो ब्लॉक हो जाता है। अभी ये सिचुएशन में उसके जो सहकारी है उनकी रिएक्शंस आप याद से देखिए, यूट्यूब पे भी ये पर्टिकुलर क्लाइमैक्स का सीन अवेलेबल है, मेरा लेक्चर होने के बाद वो फॉलो भी कर सकते हैं आप, पर मैं जस्ट नरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पर्टिकुलर सीन में ये दिखाया है कि उसके सहकारी जो है वो पैनिक हो जाते हैं। उसमें से एक सहकारी ये कहता है कि यार हम लोग तो मर गए, अभी हमारा बचना मुश्किल है, और बाकी सब लोग भी ऐसी ही बातें करते हैं और अमिताभ एकदम कूल, वो सोच रहा है कि यार ये पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल कैसे कर सके। तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर टनल में जो फँसे रहते हैं, उस वहाँ पे एक दीवार जो होती है ये कोयले की, उसको वो कान लगाता है और ये अंदाज़ा लेने की कोशिश करता है कि उसके पीछे क्या है। तो उसको पता चलता है कि उसके पीछे बहुत सारा पानी है और वो अपने सहकारियों को ये रिकमेंड करता है कि यार हम ये पर्टिकुलर दीवार जो है वो तोड़ देंगे, जिसकी वजह से पानी का बहाव आएगा बहुत फोर्सफुली और वो फोर्स जो है सामने जो वे में, हमारे जो रास्ते में जो बड़ा सा पत्थर स्टकअप हुआ है, वो फोर्स की वजह से पत्थर निकल जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली कुछ देर के लिए हम लोग सब लोग पानी में रहेंगे, पर बचने का एक बेहतरीन तरीका है और वो अमिताभ वैसे ही करता है। वो दीवार तोड़ता है, पानी का बहुत बड़ा लॉट आता है और वो फोर्स की वजह से वो पर्टिकुलर पत्थर जो है हट जाता है और उनकी जान बच जाती है। This is my definition of emotional intelligence, managing your emotions in an intelligent way। और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। ये भी रियल लाइफ इंसिडेंस है। आपको भी मालूम है 26/11 हमारी इंडियन हिस्ट्री में लिखी हुई तारीख है और आपको मालूम है कि कुछ टेररिस्ट जो थे उन्होंने हमला किया था और ताज होटल पे भी हमला हुआ था। वो पर्टिकुलर किस्सा मैं आपको नरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले साल की बात है और नवंबर में पिछले साल टीवी पे कुछ इंटरव्यूज चल रहे थे, मेरे ख्याल से इसको 10 साल हो गए थे ये पर्टिकुलर घटना होके, और उसकी जो मेमोरीज है रिकॉल हो रही थी और उस पर्टिकुलर इवेंट में जो लोग इन्वॉल्व थे ना ये पर्टिकुलर सिचुएशन में, उनके इंटरव्यूज लिए जा रहे थे। तो एक ड्राइवर था, उसका इंटरव्यू चल रहा था और वो पर्टिकुलर जो घटना थी उसका वो साक्षीदार था और वो अपना किस्सा नरेट कर रहा था।
वो बता रहा था कि मैं वहीं पे था और मैंने देखा कि कसाब और उसका एक साथी वो आ रहे हैं वहाँ से और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। और इंसिडेंटली इसी फायरिंग में ये जो ड्राइवर है उसके भी हाथ को गोली लग जाती है और खून ही खून बहना शुरू हो जाता है। अभी वो जैसे तैसे गाड़ी तक पहुंच जाता है और कसाब आगे जाके निकल के फिर से वहां पे फायरिंग करता है और वो वापस आता है ये देखने के लिए कि और कोई बच्चा है क्या गाड़ी में। अभी ये जो बंदा है ये देख रहा है कि ये लोग उसकी गाड़ी के पास आ रहे हैं। यू नो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे अच्छे अच्छे को समझ में नहीं आएगा कि यार क्या करे गाड़ी में, क्योंकि अगर वो हिलता डुलता दिखा तो डेफिनेटली वहां पे तो जान जाने वाली है। तो उस वक्त ये बंदे ने क्या किया मालूम है, उसने देखा उसकी हाथ से खून बह ही रहा है, लगभग फ्लो हो रहा था कंटिन्यूअस, और उसने क्या किया, वो जो खून है अपने सर को और चेहरे को पूरा लथपथ कर दिया हाथ से गाड़ी में। और वो ऐसे स्टीयरिंग व्हील पे ऐसा सर रख के ऐसा बस जस्ट गिर गया। कसाब आया, उसने देखा कि पूरा चेहरा पूरा सर जो है खून से लथपथ है। तो कसाब का ये इंटरप्रिटेशन हो गया कि ये आदमी मर गया है और वो वहां से निकल गया। और ये आदमी बस उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसने जो किया उसी को हम लोग शायद इमोशनल इंटेलिजेंस कि सिचुएशन को स्मार्टली मैनेज करना यानी इमोशनल इंटेलिजेंस है। दिस इज माय डेफिनेशन फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस इज योर एबिलिटी टू कंबाइन इमोशंस एंड रीजनिंग टू मेक इफेक्टिव डिसीजंस। हम लोग पांचवी डेफिनेशन पे है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है और बहुत सारी किताबों में इसका उल्लेख भी है। EQ इज एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस प्रॉपरली। आपके मन में जो भी चल रहा है वो आप ठीक से एक्सप्रेस कर पाते हो क्या, दिस इज व्हाट द इमोशनल इंटेलिजेंस इज। बहुत बार ऐसा देखा गया है खास करके यंगस्टर्स, यानी एक तरफा प्यार आपने बहुत बार सुना होगा। ये एक तरफा प्यार यानी यही बात है कि यार आप जिससे प्यार करते हो उसको आप ठीक से बता नहीं कर पा रहे हो, आपके आपके फीलिंग्स जो है वो आप ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। देखिए आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है अधांतरी नाम से जयवंत दवी की एक कादम्बरी है जो मैंने बहुत बार पढ़ी है। उसमें ना जो हीरो दिखाया है इसकी ना इसके ऊपर सीरियल भी बनी थी 1990s में। मेरे ख्याल से आप सब मेरे कंटेम्पररीज हैं और आप में से डेफिनेटली कुछ लोग तो महाराष्ट्रियन भी है। उस वक्त ना अधांतरी नाम से ही एक सीरियल भी आती थी। ये बात मैं प्रिसाइजली कर रहा हूँ 1990 की। उस वक्त वैशाली खांडेकर ने हीरोइन का रोल किया था और उसमें एक हीरो था जो नया चेहरा था, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो हीरो इंसिडेंटली हमारे ही पेशे का दिखाया गया है। वो प्राध्यापक होता है और वो एक कॉलोनी में वो नया रहने आता है और उसकी नज़र जाती है हीरोइन पे और उसको लगता है कि यार यही शायद मेरी लाइफ पार्टनर है। तो ऑब्वियसली वो उसके घर जाता है शाम को। उसके पापा पूछते हैं कि ऑब्वियसली उसके पापा ही दरवाज़ा खोलते हैं, उसको पूछते हैं कि आप कौन है और कैसे क्या आना हुआ? तो वो अंदर जाता है, बैठता है और वो बोलता है कि वो लड़की वहीं पे खड़ी होती है। उसकी तरफ हाथ दिखा के बोलता है कि मुझे ये लड़की पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अ, अपने बारे में बताता है, मैं प्राध्यापक हूँ, ये कॉलेज में हूँ, मुझे इतनी सैलरी है, मेरे घर में ये लोग हैं और ये मेरे कुछ डिटेल्स है। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे मम्मी-डैडी से बात कर सकते हैं। यानी क्या इधर-उधर की बात ना करते हुए डायरेक्टली जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस करना। पर कितने लोग इतना इतना स्विफ्टली कर पाते हैं। देखिए आज की डेट में ये एग्ज़ाम्पल इतना रिलेवेंट नहीं लग रहा होगा पर 1990 की आप बात सोचिए। मुझे क्यों याद रह गया बॉस 1990 की बात मैं 2020 में कर रहा हूँ, लगभग 30 साल हो गए बॉस। पर ये चीज़ छप गई। क्यों? क्योंकि वो इंसिडेंस जो था वो यूनिक था। ऐसा जनरली देखा नहीं जाता है कि लोग जो है ना सिंपल सा ना बोलने के लिए भी लोग इतना कतराते हैं, डायरेक्टली ना नहीं बोल पाते हैं। वो भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस का ही कैरेक्टरिस्टिक है कि जो लोग ठीक से किसी को मना नहीं कर पाते बिना उसको हर्ट किए, उनका इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो लो होता है। देखिए एग्जैक्टली उल्टा एग्जाम्पल, आपने ये मूवी भी देखी होगी, हमारे ही शायद पीरियड की मूवी है डर। ब्लॉकबस्टर मूवी थी और इसमें शाहरुख का जो कैरेक्टर दिखाया गया है एग्जैक्टली उल्टा है अधांतरी का जो हीरो था उसका। यानी जूही चावला से प्यार करता है और वो पूरे 3 घंटे में बता नहीं पाता है उसको कि वो वो उसको चाहता है, शादी करना चाहता है। गेड़ी में गलत तरीके से वो उसको तकलीफ देता है एक्चुअली। यानी मिस कॉल देना, आधी रात को कुछ वहाँ पे जाके वो माउथ ऑर्गन बजाना एंड ऑल, और इतने सारे इंसिडेंसेस दिखाए गए हैं कि वो लड़की सामने है पर ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ प्रॉपर्ली। और ये बात होती है यहाँ पे लो इमोशनल इंटेलिजेंस की। डेफिनेशन नंबर 6 पे जा रहे हैं हम लोग। इमोशनल इंटेलिजेंस इज मैनेजिंग इमोशंस इन अ पॉजिटिव वे टू ओवरकम चैलेंजेस। इसको लेके ना मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ। आपके 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 प्रोसेस में जो भी बाधाएं आती है आप उसको
किस तरीके से टैकल करते हो, दिस इज व्हाट द इमोशनल इंटेलिजेंस इज। मैं ये वीडियो रन करके देखता हूँ हो रहा है क्या। ये जो जीता वही सिकंदर मूवी का एक सीन है, सिर्फ 50 सेकंड का ये वीडियो क्लिप है। इससे शायद थोड़ा सा ना बेटर एक्सप्लेन मैं कर पाऊंगा। जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो। गॉट द मैसेज। देखिए, आमिर खान ने ये सिचुएशन को बहुत स्मार्टली टैकल किया है। एक्चुअली वो लोग उसको परेशान कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, पर जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। उनको मालूम है कि यार रेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये लोगों से झगड़ा करने के लिए नहीं, रेस जीतना इज़ द ऑब्जेक्टिव एंड दे आर वेरी फोकस्ड। और इमोशनल इंटेलिजेंस जिनका ज़्यादा होता है, वो फोकस्ड रहते हैं कि यार मुझे क्या हासिल करना है, और इधर-उधर की बातों पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। Definition number 7. Emotional intelligence is managing emotions in a positive way to diffuse conflict. आप देख रहे हैं आजकल ना ये ट्विटर नाम की एक नई बला आई है, और इसमें ना ट्रोलिंग नाम से कुछ चल रहा है, और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज ट्रोल होते हैं, और कुछ लोग तो सकम हो जाते हैं ये ट्रोलिंग को, और कुछ लोग बहुत स्मार्टली टैकल कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको भी मालूम है कि अभिषेक बच्चन और अमिताभ अभी एडमिट है कोरोना की वजह से, और अभिषेक बच्चन को मालूम नहीं क्यों तो ट्रोल किया जा रहा है, पर वो बहुत ही स्मार्टली वो पर्टिकुलर जो उसके कमेंट्स है उसको वो टैकल भी कर रहा है। अमिताभ ने तो हाल ही में एक बंदे ने अमिताभ को अभी पूछा था कि सर आप ये कोरोना से मर क्यों नहीं जाते? ऐसा कुछ उनको बोला था। तो अमिताभ ने वो सिचुएशन टैकल की थी बहुत ही स्मार्टली। मैं कुछ एग्जांपल्स अभी शेयर कर रहा हूँ। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। देखिए, इसमें ये दोनों ना अपने-अपने कैटेगरी के स्टालवार्ट्स हैं। नसीरुद्दीन शाह आर्ट मूवीज़ के बादशाह है, और अमिताभ जो है वो कमर्शियल मूवीज़ का बादशाह है। एक बार ना नसीरुद्दीन शाह ने ये कमेंट किया अमिताभ के बारे में कि यार अमिताभ बच्चन जो है वो सिर्फ़ व्यावसायिक समय सिनेमा ही कर सकता है, और उनको अभिनय की जान नहीं है। रेडी में? और वो समांतर सिनेमा में उनका कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, और मुझे लगता है कि उनका अभिनय सामान्य ही रहा है। अभी जो पत्रकार था वो अमिताभ के पास गया और उनको बताया कि नसीरुद्दीन शाह ऐसा कुछ बोल रहे हैं आपके बारे में, तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? अमिताभ सर ने ये कहा कि प्रतिक्रिया देने की क्या ज़रूरत है? अगर इतना सुलझा हुआ अभिनेता अगर मेरे बारे में ये कमेंट कर रहा है, तो मुझे ऑब्वियसली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यानी क्या? आप अपने अपने आप पे जो रिएक्शंस आते हैं या कमेंट्स आते हैं, उसको आप किस तरीके से मैच्योरिटी के साथ आप टैकल करते हो, दिस इज़ व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज़। और यहाँ पे ऑब्वियसली झगड़ा जो है, वो करना नहीं था ना, ऑब्वियसली अमिताभ तो ही इज़ वेल मैच्योर्ड यू कैन से। डेफिनेशन नंबर 8 पे हम लोग जा रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ मैनेजिंग इमोशंस इन अ पॉजिटिव वे टू रिलीव स्ट्रेस। कुछ एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं। ये आपको मालूम होगा मुल्तान ये वर्ल्ड कप की ही मैच थी, और शोएब अख्तर जो है आपको मालूम है ये 2004 की बात है। हाँ, यस, 2004 में वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें इंडिया पाकिस्तान की जो मैच हुई थी उसका ये किस्सा है। सचिन तेंदुलकर और सहवाग ये ओपनिंग के लिए गए थे, और पाकिस्तान की तरफ से शोएब अख्तर जो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है वो बॉलिंग कर रहा था, और बैटिंग कर रहा था वीरेंद्र सहवाग। ऑब्वियसली पहला ओवर था, और शोएब अख्तर जो है ऑब्वियसली उसकी स्पीड रफ्तार के लिए जाना जाता है, और बाउंसर्स डाल रहा था, और समहाउ सहवाग को सूझ नहीं रहा था कि कैसे रिप्लाई करे इसको। तो ही वाज बैडली स्ट्रगलिंग। एक 3-4-5 बॉल हो गए होंगे और सहवाग वाज लिटरली स्ट्रगलिंग, और हर बॉल डालने के बाद शोएब अख्तर उसकी तरफ से थोड़ा-सा टीजिंग के तरीके से उसको वो कमेंट कर रहा था कुछ।
और सहवाग ने जैसे तैसे उसको प्ले किया और 1 रन निकाला। अभी दूसरी तरफ जो है वो सचिन तेंदुलकर था। अभी इस तरफ बॉलिंग एंड पे वीरेंद्र सहवाग आ गया था और उसी वक्त शोएब अख्तर ने सहवाग को कुछ कमेंट किया कि क्यों कैसी रही? तो सहवाग का जवाब ये था कि तेरा बाप सामने खड़ा है, उसको बॉलिंग डाल के दिखा। और ये वीरेंद्र सहवाग ने इसी शब्दों में ये पूरे इंटरव्यू में बताया भी था। मैंने उसको ऐसा बोला था कि तेरा बाप सामने खड़ा है, उसको बॉलिंग डाल के दिखा। तो उसके बाद का जो बॉल था, वो बॉल पे सचिन ने 6 मारा था। और ये जो है ना, ये आइकॉनिक शॉट कहते हैं कि थर्ड मैन की तरफ 6 मारना इट इज़ नॉट ईज़ी। और सचिन ने उसकी पेस का ही इस्तेमाल किया था और वो 6 मारा था और आइकॉनिक 6 इसको कहा जाता है। जितने भी क्रिकेट के बुलेटिन्स वगैरह आते हैं ना, उसमें जो ग्लिम्पसेस आते हैं वो इस शॉट के हैं। देखिए सचिन यहाँ पे जो है उसका इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि उसको मालूम है कि यार खेलने के लिए आए हैं और ये टीजिंग या ट्रोलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है और हमको तो एक्चुअली जवाब जो है वो बैट से देना ही बेहतर है और सचिन ने वही किया था। डेफिनेशन नंबर 9 पे टोटल 10 डेफिनेशंस में लेके आया हूँ, उसमें से 90 डेफिनेशन। EQ इज रेगुलेटिंग योर इमोशन सो दैट योर डिसीजन मेकिंग शुड नॉट गेट हैम्पर्ड। यानी EQ में आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की कोशिश करते हो जिसकी वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो हैम्पर ना हो और आपके डिसीजन जो है वो गलत ना हो। यानी एक पर्टिकुलर इमोशन हावी होने की वजह से आपके जो डिसीजन है वो अगर गलत हो रहे हैं तो आप में शायद एक अंतर है। फिर से मैं रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, नागपुर की घटना है। नागपुर से लगभग 35 किलोमीटर्स, मुझे लगता है ये फन एंड फूड विलेज या हाईलैंड पार्क वगैरह जिस तरफ है ना, वहाँ पे स्कूल की पिकनिक गई थी और ये छोटे बच्चे थे, नर्सरी के जीवन के चिट्टू के। लगभग 35 किलोमीटर पे ये पिकनिक गई थी और वहाँ पे आपको मालूम है कि आजकल ये छोटे बच्चों को भी टाई वाई पहना के देते हैं। तो एक बच्चा स्लाइड कर रहा था, तो उस वक्त स्लाइड करते करते उसका जो नेकटा है वो ऊपर कहीं फंस गया और वो वहां से नीचे लटक लटक रहा था। यानी क्या, लिटरली उसको फांसी लगे जैसा हो गया। वहां पे टीचर्स थे, इसलिए वो जो बच्चे थे उन्होंने टीचर्स को बताया, 2 लेडी टीचर्स थी वहां पे, और वो लेडी टीचर्स को बताया कि ये ऐसा कुछ हुआ है। तो ये लेडी टीचर दौड़ के आई और वो इतनी ज्यादा पैनिक हो गई थी, इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई थी कि उन्होंने पैनिक के मारे में क्या करे समझ में नहीं आया, तो उन्होंने वो बच्चे को ऑब्वियसली नीचे उतारा और उसके घर वालों को फ़ोन किया कि आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो ऑब्वियसली आप नागपुर से 35 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ना आपको, आधा घंटा 40 मिनट। और ये पेरेंट दौड़ के गए और वहाँ से फिर उसको हॉस्पिटल में लेके गए और डॉक्टर का कहना ये था कि आप थोड़ा जल्दी लाते तो शायद बच्चा बच गया होता। गेटिंग मी? यानी ये शॉकिंग न्यूज़ है बॉस कि आप टीचर हो और आप उस सिचुएशन को टैकल नहीं कर पा रहे हो बॉस। यानी वहाँ पे हुआ क्या, वो टीचर की नेगेटिव इमोशंस उन पे हावी हो गई जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाए कि यार ये बच्चे को डॉक्टर के पास तो लेके जाते हैं जो भी नज़दीक हॉस्पिटल है वहाँ पे, पर ये हो नहीं पाया क्योंकि वो पैनिक में चले गए थे। सो दिस इज़ व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज़। आप अपने इमोशंस को इस तरीके से रेगुलेट करते हो कि जिसकी वजह से आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इन्फ्लुएंस ना हो और आपके डिसीजंस गलत ना हो। हम लोग लास्ट डेफिनेशन पे जा रहे हैं और किताबों में या इंटरनेट पे आपको जो डेफिनेशन दिखेगी ये चार्ट आपको दिख जाएगा। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस के 2 पार्ट्स है, एक है सेल्फ मैनेजमेंट को लेके और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस ऑफ अदर्स। यानी जहाँ तक सेल्फ मैनेजमेंट की बात है इसको हम लोग कहते हैं इंट्रापर्सनल स्किल, और दूसरों के साथ रिलेशनशिप में जब आप है तो उनकी इमोशंस को मैनेज करने का जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। यानी क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस ये 2 स्किल्स का कॉम्बिनेशन है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। बात करते हैं ये चार्ट की, ये डेनियल गोलमन की किताब में ये चार्ट दिया हुआ है। इमोशनल इंटेलिजेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है पर्सनल कॉम्पिटेंसी, इट इज अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट, और इसमें 3 चीजें दी गई हैं। इसमें ये कहा गया है कि यू जस्ट डिटरमाइन हाउ डू वी मैनेज आवरसेल्फ, हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ। और इसमें 3 चीजें आती है, सेल्फ अवेयरनेस यानी दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, और तीसरा मोटिवेशन, और दूसरी चीज है सोशल कॉम्पिटेंस। यानी आप दूसरों के साथ रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशनशिप को आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे मैनेज करते हो। और इसमें 2 चीजें आती है, एम्पैथी और सोशल स्किल। और ये जो पार्ट है यहाँ का, ये वाला, इसी को हम लोग बेसिकली एसक्यू कहते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम लोग एसक्यू कहते हैं। हम लोग तीसरे सेक्शन में जा रहे हैं, साइंस ऑफ हाई IQ। एक आदमी में इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा है, इसके प्रमाण क्या होते हैं जानने की कोशिश करते हैं।
देखिए इसके ट्रेड्स बहुत सारे हैं, मुझे तो लगभग 20 मालूम है, पर मैं 3 से 4 अभी डिस्कस कर रहा हूँ। जिनका EQ हाई होता है ना, वो दिखने में कुछ ऐसे दिखते हैं। गेटिंग मी? लाइफ को ईज़ी गो लकी जिसको हम लोग कहते हैं, ईज़ी गो लकी और लाइफ को एन्जॉय करने वाले, ठीक से जीने वाले, ये बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं। देखिए जिनका EQ ज़्यादा होता है, लोग उनके संपर्क में रहना चाहते हैं। गेटिंग मी? जिनका EQ ज़्यादा होता है, लोग उनके संपर्क में रहना चाहते हैं। ये ना आपका नेटवर्क अगर बहुत ज़्यादा तगड़ा है, आपके स्कूल के आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अभी भी आपके टच में है, आपको एक सोशल एक्सेप्टेंस अच्छा है, तो ऑब्वियसली आपका EQ ज़्यादा है। दूसरा देखते हैं जिनका EQ ज़्यादा होता है ना, दे रिमेन कूल इवन इन स्ट्रेस सिचुएशंस। आपको भी मालूम है कि महेंद्र सिंह धोनी इज बेसिकली नोन फॉर हिज कैप्टन कूल हम लोग इसको कहते हैं। और कितनी भी बड़ी सिचुएशंस क्यों ना हो, आपको मालूम है जो वर्ल्ड कप हमने जीता था उसमें लास्ट ओवर जो कराया था मेरे ख्याल से योगेंद्र शर्मा था ना, योगेंद्र शर्मा। और वो बॉलर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था उस वक्त, तो भी वर्ल्ड कप ने उसका लाइफ बना दिया। पर धोनी ने वो रिस्क ली बॉस, कि लोग सभी चर्चा हो रही थी उस वक्त कि यार इसको क्यों दिया आखिरी ओवर, इतना क्रूशियल ओवर। पर धोनी वाज सो कूल। और इतने बार हम लोगों ने धोनी को देखा है कि इतनी स्ट्रेस सिचुएशन में एकदम कूल रहता है, जिसकी वजह से उसकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो हैम्पर ना हो। तो जिनका EQ ज़्यादा होता है वो कूल रहते हैं। तीसरा, EQ जिनका ज़्यादा होता है दे फोकस मोर ऑन अचीविंग देयर गोल। जैसे मैंने इसके बारे में भी चर्चा की थी कि जो जीता वही सिकंदर का सीन हमने देखा था। और एक किस्सा सचिन तेंदुलकर का। आप देखेंगे मेरे आज के सेशन में मैंने एक तो बॉलीवुड और क्रिकेट जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चलते हैं और जिसके साथ हम लोग रिलेट करते हैं, ऐसे एग्जांपल्स लेके आया हूँ। और हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी है, सुनी है, इसलिए ना ये कंसेप्ट समझाने के लिए मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। और एक एग्जाम्पल जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भी रियल लाइफ एग्जाम्पल है। आपको याद होगा 2004 में मुल्तान में जो टेस्ट हुई थी, उसमें सचिन तेंदुलकर 194 पे था और उस वक्त द्रविड़ कैप्टन था और द्रविड़ ने वो इनिंग डिक्लेयर कर दी। आपको सुन के शायद ताज्जुब होगा कि सचिन तेंदुलकर ने 2004 से पहले कभी भी डबल सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में नहीं की थी और उसकी डबल सेंचुरी जस्ट 6 रन्स उसको चाहिए थे। और आपको मालूम है कि यार एक आदमी का लाइफ का रिकॉर्ड बन जाता है और उसी वक्त द्रविड़ ने इनिंग डिक्लेयर कर दी थी। और बड़ी इस पे बवाल जिसको हम लोग कहते हैं, बड़े डिस्कशंस हुए। एक्स्ट्रा इनिंग में जो डिस्कशंस चलते उसमें भी वो डिस्कशंस हुए। और इम्पोर्टेंटली ना वो मैच हमने बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से जीत लिया था। और द्रविड़ ने उस वक्त डिसीजन ले लिया था कि मुझे इनिंग डिक्लेयर करनी है। और मुझे तो लगता है अच्छा खासा टाइम मार्जिन था कि हम लोग आसानी से, यानी सचिन की सेंचुरी हो सकती थी डबल सेंचुरी, उसके बाद भी अच्छा खासा समय था। पर उस वक्त नहीं मालूम था, जिस वक्त राहुल द्रविड़ ने ये इनिंग डिक्लेयर की थी उस वक्त नहीं मालूम था कि पाकिस्तान की विकेट जल्दी जल्दी गिर जाएगी। अभी जब जैसे ही राहुल द्रविड़ ने वो इशारा किया कि आप आ जाओ, सचिन तेंदुलकर वाज अगास्ट, अरे यार ये क्या हो गया, मैं तो सिर्फ 6 रन दूर हूँ मेरे और एक रिकॉर्ड के। पर उसने जस्ट हल्के से, मैंने वो लाइव भी देखा हुआ है, उस वक्त भी 2004 में भी मैं ये देख रहा था। पर फ्रस्ट्रेशन कहीं नहीं था कि बैट पटकना एंड ऑल, कहीं पे भी नहीं था। और मजे की बात देखो, जब ड्रेसिंग रूम में सचिन तेंदुलकर जा रहा था तो सबके सब प्लेयर्स राहुल द्रविड़ को घेर के बैठे थे। और जैसे ही सचिन तेंदुलकर ड्रेसिंग रूम में आया, सबकी नजरें सचिन पे थी कि सचिन कैसे रिएक्ट करता है, यानी में सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविड़ को क्या बोलेगा। एक्चुअली ना जब सचिन तेंदुलकर ड्रेसिंग रूम में गया, उसने राहुल द्रविड़ को कुछ भी नहीं बोला। उसने बाकी बच्चों को, बाकी यानी उसके जो प्लेयर्स थे उनको कहा कि गाइस कम ऑन यार, कि आप, हम लोगों को अभी फील्डिंग करनी है, लेट अस गेट ऑन ग्राउंड एंड द शो मस्ट गो ऑन। दैट वाज द सिंपल रिप्लाई यू कैन से, एंड दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इमोशनल मैच्योरिटी। दूसरा एक एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस जिनका ज़्यादा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इमोशनल इंटेलिजेंस जिनका ज़्यादा होता है वो सिचुएशन को रिएक्ट नहीं करते हैं, वो सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी जो स्कूल पिकनिक वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था ना, उसमें टीचर्स ने सिचुएशन को रिएक्ट किया था, रिस्पॉन्ड नहीं। समझने की कोशिश करते हैं, रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करने में फ़र्क क्या है। फिर से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अमिताभ और राजेश खन्ना, ये नमक हराम है, सॉरी, नमक हराम का ये सीन है। उन दिनों ना राजेश खन्ना ऑब्वियसली सुपरस्टार था और अमिताभ जो है वो सुपरस्टार करके इमर्ज हो रहा था। उस वक्त ना पत्रकार ने राजेश खन्ना का इंटरव्यू लिया था और उसको
राजेश खन्ना को इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि यार ये अमिताभ अभी सुपरस्टार हो गया है और आपका समय जो है वो शायद खत्म होने को आया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राजेश खन्ना की प्रतिक्रिया ये थी कि ऐसे कितने सारे अमिताभ आके चले गए, पर राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम जो है ना वो कोई छीन नहीं पाया है। बहुत देखे मैंने। अभी यही बात वो पत्रकार अमिताभ के पास लेके गया और उनको अमिताभ को कहा कि यार राजेश खन्ना साहब आपके बारे में ऐसे कह रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अमिताभ ने प्रतिक्रिया ये दी कि यार देखो इंडिया में सुपरस्टार ये जो पद है ये राजेश खन्ना साहब ने ही क्रिएट किया है। इंडिया के वो पहले सुपरस्टार है और वही शायद यहाँ से आगे भी सुपरस्टार रहेंगे। मैं तो लर्निंग के प्रोसेस में हूँ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन एंड नॉट रिएक्टिंग टू द सिचुएशन। और एक बेहतरीन एग्जाम्पल शायद कि रेस्पॉन्ड और रिएक्ट किसको कहते हैं, और ये भी रियल लाइफ एग्जाम्पल है। पुलिस कमिश्नर का एक एग्जाम्पल है। देखिए पुलिस हेडक्वार्टर में एक मीटिंग चल रही थी और अच्छे खासे सीरियस डिस्कशंस हो रहे थे, और उतने में पियून कमिश्नर साहब के पास आके कान में बोलता है कुछ, और वो बोलता है कि साहब आपको फ़ोन आया है, दूँ क्या? तो ऑब्वियसली और वो बता देता है कि फ़ोन किस चीज़ को लेके है, क्योंकि वो मीटिंग जो है वो बहुत सीरियस है और वहाँ पे किसी को आने को भी मना है, पर वो आता है पियून और बताता है कि ऑब्वियसली वो फ़ोन उठाते हैं और सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, सुन लेते हैं अगला क्या बोल रहा है फ़ोन पे, और वो सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, ठीक है मैं आ रहा हूँ। और फिर वो फ़ोन रख देते हैं और अपने साथियों को कहते हैं कि गाइज़ यू प्लीज़ कैरी ऑन, आई विल जॉइन यू विद इन अ मिनट। वो बाहर जाते हैं और वहाँ पे एक्चुअली कुछ करते हैं और वो वापस आते हैं मीटिंग में। अभी मीटिंग में जो लोग बैठे हैं ऑब्वियसली मीटिंग खत्म हो जाती है, उस वक़्त वो पूछते हैं कि यार आप इतनी सीरियस लेवल की मीटिंग चल रही थी, वो छोड़ के आप बाहर गए थे, ऐसा क्या हुआ था? तो उस वक़्त कमिश्नर का जवाब ये होता है कि यार बाहर दंगे चल रहे थे, मारा-काटी चल रही थी और वो उसको मैं टैकल करके आया हूँ। यानी अभी बात क्या हो रही है? रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना। यानी आप एक नॉर्मल आदमी को देखिए कि अगर ऐसा कुछ आता है, उसकी रिएक्शन क्या होती है? क्या? कब? कैसे हुआ बे? अबे तुम क्या कर रहे थे? ये ऑब्वियस रिएक्शंस होती है, पर इनकी रिएक्शन क्या थी? सुन लेना, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इमोशनल मैच्योरिटी एंड रेस्पॉन्डिंग, क्योंकि वहां पे जाके वो सिचुएशन टैकल करना शुड बी द प्रायोरिटी। यहाँ पे आप फोन पे चिल्ला रहे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब से चल रहा है, इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। और एक एग्जांपल बॉलीवुड मूवी से ही, मुझे मालूम है ये मूवी तो फ्लॉप हुई थी पर मेरी फेवरेट मूवी में से है। इसमें कमल हसन और मनीषा कोइराला थी और उनका एक बच्चा, जैसे ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इनकी स्टोरी थी, मुंबई एक्सप्रेस नाम से मूवी थी और लगभग 10 साल पहले ये आई थी। पार्ट अपार्ट ये मूवी में एक सीन दिखाया हुआ है। ये जो बच्चा है ना, कुछ हो जाता है कारण और वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है और वो छत पे आ जाता है और छत की जो पैरापेट वॉल है ना उसके ऊपर चढ़ता है और ऑब्वियसली कूदने के लिए नीचे। तो उसके पीछे-पीछे भाग के उसकी मम्मी यानी मनीषा कोइराला दौड़ के आती है और जैसे ही वो उसको देखती है पैरापेट वॉल पे खड़ा है तो उसके मुँह से चीख निकल जाती है। वो बोलती है, "अरे क्या कर रहे हो? नीचे आ जाओ, ऐसे मत करो।" वो चिल्ला रही है और उसी वक़्त कमल हसन भी वहाँ पे है और वो क्या करता है, वो बच्चे से बात करता है और बात करते-करते उसके नज़दीक जाता है और एक मोमेंट पे उसको नीचे खींच लेता है। यानी क्या सिचुएशन एक ही है पर 2 लोग, एक रिएक्ट कर रहा है यानी चिल्ला रहा है, "अबे क्या कर रहा है तू? क्यों कर रहा है? नीचे आ, ऐसा नहीं होगा। इतने सी बात पे क्या जान देते हैं?" ये हो गई रिएक्शन और रिएक्ट यानी क्या? आप सिचुएशन को रीड कर रहे हो, उसकी गंभीरता को देख रहे हो, उसको आपको जो योग्य करना चाहिए वो आप कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस है और जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, वो सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं। और एक एग्जांपल यानी और एक ट्रेट आप बोल सकते हैं कि जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, दे आर एबल टू रीड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपने थ्री इडियट्स देखी होगी और आपको मालूम है कि एक पर्टिकुलर सीन में जब आमिर खान और उसके 2 साथी वो शादी की पार्टी में घुस जाते हैं और लिटरली वहाँ पे वो खाना खाते हैं ज़बरदस्ती। वो वहीं पे करीना कपूर भी खड़ी है और वहाँ पे उसका जो फियांसे है, वो दोनों में कुछ टसल चल रहा है और वो बोलता है कि यार तूने ये इतनी पुरानी घड़ी क्यों पहनी है? घड़ी में जाओ जाके चेंज करके आओ। और 1-2 सीन के बाद आमिर खान को ये बोलते हुए दिखाया है कि ये तुम्हारी मम्मी की घड़ी है ना? यानी क्या? आपको यानी आमिर खान का डायलॉग है कि लड़की ऊपर से नीचे पूरी सज-धज के हो और घड़ी अगर पुरानी हो तो वो डेफिनिटली उसकी मम्मी की ही होगी और उसके साथ कुछ सेंटिमेंट जुड़े होंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि अगले का माइंड रीड करते आना, उसकी सिचुएशन समझना और उसको रिस्पॉन्ड करना। दिस इज़ व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ और जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, वो दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं और जानते भी है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है।
और एक एग्जाम्पल और एक ट्रेड आप जैसे बोल सकते हो, जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है वो सिंपैथेटिक होते हैं और केयरिंग होते हैं। ये भी रियल लाइफ स्टोरी है। जमशेदजी टाटा, आपको मालूम है कि इंडिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। एक वाकया ऐसा है कि एक मीटिंग थी कि कुछ टाटा स्टील को एस्टेब्लिश होके कुछ 25 साल हुए थे मेरे ख्याल से, मुझे ठीक से डिटेल्स नहीं मालूम, पर एक बड़ा ओकेजन था कि जहाँ पे वो पर्टिकुलर कंपनी के सभी लोग, वो वर्कर्स हो या एग्जीक्यूटिव कैडर के लोग हो, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे जमे थे और एक असेंबली जैसा था। और टाटा जो है, जमशेदजी टाटा, वो मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे और ऑब्वियसली उन्होंने पूछा कि आपको कैसे लग रहा है कंपनी में काम करते हुए, और आपकी कुछ तकलीफ होगी तो आप मुझसे बिल्कुल फ्रीली बात कर सकते हो, और आज मैं उसी के लिए आया हूँ, ऑक्सीजन भी अच्छा है। तो उसमें से ना जो लेबर कैटेगरी जो दूसरी तरफ बैठी थी, उसमें से एक आदमी उठा और उसने बोला कि साहब, हमारे टॉयलेट्स बहुत गंदे हैं साहब, आप उसका कुछ करिए। तो ऑब्वियसली इस तरफ एग्जीक्यूटिव का कैडर बैठा था। टाटा साहब ने एग्जीक्यूटिव कैडर की तरफ देखा और उनको पूछा कि यार, इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, कितने दिन लगेंगे नया टॉयलेट बनाने के लिए या फिर उसी को रिनोवेट करने के लिए। तो एक एग्जीक्यूटिव ने जवाब दिया कि साहब 1 महीने में हो जाएगा। टाटा साहब ने बोला या टाटा साहब ने उसकी तरफ देखा और उसको बोला कि यार ये 1 घंटे में हो जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ। टाटा साहब ने क्या किया, उनका जो असिस्टेंट था उसको ऑर्डर दिया कि आप ये जो 2 टॉयलेट्स है उसकी पार्टियाँ एक्सचेंज कर दीजिए। एग्जीक्यूटिव्स जो टॉयलेट है उसकी पार्टी इधर करिए और लेबर टॉयलेट की पार्टी आप एग्जीक्यूटिव के टॉयलेट पे लगा दीजिए। और आप यकीन मानिए टॉयलेट 7 दिन में बन गया था। दिस इज़ व्हाट इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आप दूसरों की फीलिंग्स की कदर करते हो, उनकी जो तकलीफ है उनको समझ के आप उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज़। और एक किस्सा, थोड़ा-सा आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम इसलिए मैं ये एक्सक्लूड कर रहा हूँ। मैं नेगेटिव इमोशंस के साइंस जो है उस पे आ रहा हूँ। हार्डली 2 मिनट बचे हैं तो मैं जस्ट कंक्लूड कर देता हूँ। साइंस ऑफ लो ईक्यू, कि आप कैसे पहचानेंगे कि एक आदमी का ईक्यू कम है। ये लोग ना दिखने में ऐसे होते हैं, जिनका ईक्यू कम होता है ना, ऐसा लगता है इनको देखने के बाद कि सारी दुनिया की चिंता इनके ही सर पे है। आप देखेंगे जैसे ये पिक्चर देख रहे हैं आप, इसमें से ही पता चलता है कि यार ये आदमी ज़िंदगी से खुश नहीं है और इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी वो खुश नहीं रखता होगा। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि लो इंटेलिजेंस जिनमें होता है वो कैसे होता है। ऑब्वियसली वो रूड होते हैं, वो क्रिटिकल होते हैं, क्रिटिकल टू हैंडल। उनसे ना आप अचानक से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। आपको ज़िंदगी में इतने लोग आते हैं ना, आपने कभी बहुत बार महसूस भी किया होगा कि एक ऐसा आदमी अनजान बिल्कुल, पर एक 2, 4, 5 मिनट में आपकी वेवलेंथ जुड़ जाती है और लगता है कि आप सदियों से दोस्त हैं। यानी वो जो आदमी है वो है हाई क्यू वाला। और कुछ लोग तो ऐसे कि यार आप उनको यानी 10 साल से भी मिल रहे हो पर फिर भी खुद होके उनसे बात करने की इच्छा नहीं होती है। यानी में क्योंकि वो बात करने के लिए ओपन माइंडेड ही नहीं है, या फिर तकलीफ है उनसे बात करने में, हिचकिचाहट है, या फिर वो कम्युनिकेशन में डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है आपको। ऐसे लोग जो है ना, इनका ईक्यू जो है वो जनरली कम होता है। ये ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम की बात करते हैं, सॉल्यूशन की नहीं। इसका एक किस्सा बता रहा हूँ, मेरे ही साथ हुआ था। देखिए, हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट करनी थी हमारे कॉलेज की, तो मीटिंग में कुछ लोग हम लोग बैठे थे और मैंने सोचा कि यार फुटाड़ा पे हम लोग ऐड करते हैं। तो उसमें से एक आदमी ने बोला कि यार ये मत करो, फुटाड़ा पे एडवर्टाइजिंग का खर्चा जो है वो वेस्ट हो जाएगा। मैंने बोला चलो यार हम लोग पैम्पलेट्स बांटते हैं, तो उसमें भी तकलीफ नहीं यार, पैम्पलेट कौन पढ़ता है। यानी जितने भी सजेशंस आए थे वो सब डिस्कार्ड हो गए। पर यहाँ पे बात जो है ना, एक चीज़ काम नहीं करेगी, इसके ऊपर आप बहुत बात कर रहे हो, पर ये काम कैसे होगा? ठीक है, होर्डिंग नहीं लगाएँगे, पैम्पलेट्स नहीं बाँटेंगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ नहीं देंगे, ठीक है ना? करेंगे क्या ये तो बताइए? यानी क्या, लो इंटेलिजेंस जिनका होता है, लो इमोशनल इंटेलिजेंस जिनका होता है, वो सिर्फ़ प्रॉब्लम की चर्चा ज़्यादा करते हैं, सॉल्यूशन की नहीं। ये लोग ना आपकी फीलिंग्स को लेके इनसेंसिटिव होते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, आप कौन से मूड में हैं, ये ना देखते हुए आपके ऊपर ना ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। मराठी में एक मूवी आई थी अगं अरेच्चा, उसमें जो बॉस दिखाई गई है ना, लेडी बॉस थी, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस लो है। मैं कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट है मेरे पास। देखिए, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सिर्फ आईक्यू की वजह से सक्सेसफुल नहीं होते, और ये प्रूवन स्टोरी है। सक्सेसफुल आदमी के पास दोनों चीज़ें होती हैं, आईक्यू और ईक्यू भी। और ये बात भी प्रूव हो चुकी है कि जिनका ईक्यू ज़्यादा होता है वो सक्सेसफुल रहते हैं।
डेनियल गोलमन जिनकी किताब की मैं बात कर रहा था, उन्होंने किताब को स्टैटिस्टिक्स भी दिया है इस पर्टिकुलर रिगार्ड में। एक आदमी अगर सक्सेसफुल है, आईक्यू अकाउंट्स फॉर ओनली 20% फॉर ए पर्सन सक्सेस। एक आदमी अगर सक्सेसफुल है तो उसमें उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसका नॉलेज जो है वो सिर्फ 20% होता है। वो अपने आप को कैरी कैसे करता है, अपने साथ जो लोग हैं उनको कैरी कैसे करता है, वो ज़्यादा मैटर करता है। मीन्स ईक्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन सक्सेस में 80% तक होता है। देखिए, हमारी जो सोसाइटी है इसमें हर 100 में से 15 लोग ही ऐसे हैं कि जिनका ईक्यू हाई है, और 85% लोग ऐसे हैं कि जिनका ईक्यू, यानी क्या, जिनका ईक्यू हाई है, ये लोग कम मात्रा में अवेलेबल है सोसाइटी में। ये शायद लास्ट स्लाइड है मेरी। पीपल दैट हैव हायर EQ एंड SQ टेंड टू गो फार्दर इन लाइफ देन दोस विद हाई IQ। जिनका IQ ज़्यादा है वो लोग कम सक्सेसफुल है, पर ऐसे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल है जिनका EQ और SQ ज़्यादा है। यानी क्या, जिनका नेटवर्किंग स्किल ज़्यादा है और जिनके पास हाई EQ है, वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल पाए गए हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक ऑन योर क्वेरीज इफ देयर आर एनी। प्रीति मैडम। हाँ सर। पार्टिसिपेंट्स, प्रश्न? आपको कुछ क्वेरीज होगी तो आप पूछ सकते हैं सर से, और कुछ डिस्कस करना होगा तो। No questions? Yes. No. Good morning, sir. Dr. Ashish, sir. Good morning. It's a सर doctor. गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत अच्छा लगा आपको ऑनलाइन देख के, इसी बहाने बात हो गई हमारी। So it's a long time to meet you. Sir, Yes. sir, how students should tackle the AQ? Of course, the topic was not on AQ, but is it possible to, what are the measures that students should take? Or what are the अच्छा। measures we should ask a student to do it? अच्छा, स्टूडेंट्स का EQ लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, ये क्वेश्चन है शायद ना? No, AQ. How to tackle the AQ? एडवर्सिटी क्वेश्चन, एडवर्सिटी क्वेश्चन। सर, एडवर्सिटी क्वेश्चन ये इमोशनल क्वेश्चन से ही निकला हुआ एक पहलू बोल सकते हैं आप। सर, ये चीज़ जो है ना, ये एक्सपोजर की बात होती है सर। आप देखेंगे सर, गांव खेड़े के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना कुछ रिसोर्सेज के मेरिट भी आ जाते हैं, सिचुएशन को बेटर टैकल कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एडवर्सिटीज बहुत ज़्यादा झेली है सर। और जो वेल ऑफ फैमिली से बच्चे आते हैं ना, वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पैनिक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपोजर कम पड़ता है सर। उन्होंने ऐसी सिचुएशंस फेस ही नहीं किए ना सर। आज सर पेरेंट्स को आप देखते हैं ना, छोटे बच्चे खास करके स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स का पैम्परिंग देखिए सर। मूंगफली के दाने, यानी मूंगफली आप घर में लेके आए हो तो बच्चों को मूंगफली नहीं देते सर, मूंगफली फोड़ के दाने निकाल के देते हैं। यानी क्या, चैलेंजेस आप उनको फेस करने ही नहीं दे रहे ना सर, जिसकी वजह से वो ये ऐसी सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाते। इट इज मोर अबाउट सर एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस, कि आपने बैड पैचेस कितने देखे हुए हैं, वो आपका AQ जो है वो शायद डेवलप कर देता है। इट इज ऑल अबाउट योर एक्सपोजर, और आपके बैड एक्सपीरियंसेस अर्ली स्टेजेस में कितने आए हैं, उससे आदमी स्ट्रांग हो जाता है सर। That's true. Our generation was in generation which have seen both the things. We know very well how to go through this, and we are also seeing the today's generation. Correct, sir. So, what was the basic observation is that there was a very they are not able to handle the situations very well. Correct. True. So, if there is any mechanism that since you are done a lot of research, like you have given that the 16 every day some 16 or 15 people are making a suicide and all those things. So Correct, whether you have come up with certain solution for that? सर, इसके ऊपर अच्छा खासा काम हुआ है कि EQ कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके ऊपर किताबें भी हैं और गूगल पे भी तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, पर वो ना सर मुझे थ्योरी लगते हैं। प्रैक्टिकल की अगर आप बात करेंगे ना सर, देखिए बचपन से ही, जैसे हमारी जो जनरेशन है ना सर, हम लोगों को ना टाइम टू टाइम ये इनपुट्स आए हैं, पर इंसिडेंटली ये जनरेशन को नहीं आ रहे। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ सर, जो आपके साथ मेरे साथ भी हुआ है, और आज अभी जो पार्टिसिपेंट जुड़े हैं इनके साथ बचपन में डेफिनेटली हुआ होगा सर, कि हम लोगों को जब भी गुस्सा आता था ना, तो फैमिली का कोई एक बड़ा मेंबर हमको बोलता था कि यार गुस्सा आता है तो तू काउंटिंग कर ना 1 to 100, तू पाडे मन मनातल्या मनात, सो दैट तुझं लक्ष जे आहे ते दुसरीकडे जाईल। ये इनपुट जो है ये हम लोगों को शायद बेटर आए हैं, पर बीइंग ए पेरेंट शायद ये हम लोग उनमें ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे। सर एक सिंपल सा एग्जांपल, देखिए सर, हम सब, मुझे लगता है हम लोग सब कंटेम्पररी है, एक ही जनरेशन के हैं। देखिए सर, हम में से सभी की गाड़ी जो है कभी ना कभी जिंदगी में पहली बार तो पकड़ी होगी RTO के पुलिस ने। अभी जिस वक्त पहली बार ये ऐसा कन्फ्रंटेशन हमारा हुआ था, आप सोचिए कि हम लोगों ने क्या किया था। शायद हम लोगों ने वो सिचुएशन को ठीक से डील नहीं किया था, हम लोग पैनिक हो गए।
पर आज अगर ट्रैफिक पुलिस हम लोगों को पकड़ लेता है, गाड़ी चालान होती है ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। हम लोगों को मालूम है वो सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, व्हाट आर द रिपरकशंस एंड ऑल। हम लोग टैकल कर लेते हैं आज विद ईज़, और उसका बड़ा कारण ये है कि ये ऐसी घटनाएँ हमने सही है और बिना किसी सपोर्ट के हमने ये सही है, उसको टैकल कर लिया है, जिसकी वजह से आज शायद हम लोग कंफर्टेबल है उसी चीज़ को डील करने के लिए। इसमें ना सर ट्रेनिंग्स भी होते हैं, यानी साइकोलॉजी, मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ नहीं सर, मेरा साइकोलॉजी का बैकग्राउंड भी नहीं है। बट इंसिडेंटली मैं एक्सीडेंटली रादर मैं ये पर्टिकुलर डोमेन में आ गया और आई गॉट इन फैंसी विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक सर। अच्छा लगा मुझे ये, और अच्छा खासा काम भी किया, फिर जानते गया, लोगों के ऑब्जर्वेशंस करते गया, तो ये टॉपिक के साथ प्यार हो गया। और आप भी देख सकते हैं सर, आज भी मेरा जो प्रेजेंटेशन था, इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो है वो मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। इसमें इंटरनेट या बुक का मैंने बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश नहीं की, एंड ओवर द पीरियड आई हैव बीन ऑब्जर्विंग इट। सो दिस इज द थिंग सर। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे दोनों लड़कों को मैंने मतलब आपका प्रेजेंटेशन पूरा सुनाया। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। बीइंग अ पेरेंट, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू सर। आप जो मुझे पूछ रहे थे ना क्या करना चाहिए, मुझे लगता है एक्सपोजर, ये चीज़ ऐसी कुछ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि सर किताबों में तो ये चीज़ें है नहीं। और जैसे मैं बार-बार बोल रहा हूँ, और ये यानी एम्पिरिकली टेस्ट भी हो चुका है कि ये चीज़ जिसके पास है वो आज शायद ज़्यादा सक्सेसफुल है। जिसके पास मार्क लिस्ट पे बहुत अच्छे मार्क्स है, आज आप देखेंगे सर 90% बताना इज प्रीटी कॉमन। एक ऑर्डिनरी बच्चा 90% दिखा देता है, बता देता है। हमारे वक्त हमको तो कॉम्प्लेक्स आता है सर, हमने तो कभी 60% के ऊपर देखे नहीं ना। और आज एक ऑर्डिनरी बच्चा 90% दिखा देता है, और वो एक ओवर कॉन्फिडेंस पे चला जाता है सर कि मुझे तो 90% है। पर बेटा उसका करना क्या है? इनको ना आदत नहीं थी करना। सर सिंपल सी बात बताता हूँ, आपने बात छेड़ी है सर। मैडम मैं बात करूँ ना 2 मिनट? हो सर वेळ आहे, काही प्रॉब्लेम नाही। देखिए सर, हम लोग ना जिंदगी में लगभग 20 साल एजुकेशन लेते हैं सर, इसे लेके पीजी तक अगर काउंट करते हैं तो ये टोटल काउंट होता है 20 साल का पीरियड। अभी एक छोटा सा इल्यूस्ट्रेशन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इंसिडेंट मेरे साथ एक्चुअली लाइव हुआ था, और ये इंसिडेंट्स ने मुझे ना एक लाइफ का बहुत बड़ा सार दे दिया, वो आपके साथ नरेट कर रहा हूँ। मैं ना दत्तावाड़ी में रहता हूँ नागपुर में, और मेरा कॉलेज है रविनगर में, और मैं डेली मेरा जो रूट है कैंपस स्क्वायर जो आता है, वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में जो फुटाड़ा की बस्ती है, वो ढलान है, तालाब की तरफ जाती है, वो मेरा रोज का रूट है। और ये बात है लगभग 8-10 साल पहले की, और उस वक्त मैं 2 व्हीलर से रोज जाया करता था, सेम रूट था। और एक पिक्यूलियर थिंग मेरे साथ होती थी उस वक्त, जैसे ही मैं वो कैंपस का चौक क्रॉस करके नीचे की तरफ जा रहा था, तो एक कुत्ता ना, ही दैट पर्टिकुलर डॉग यूज्ड टू फॉलो मी, और वो मुझ पे भौंकता था। ये रोज का हो गया था। फिर ना ओवर द पीरियड मैंने ये ऑब्जर्व करने की कोशिश की, थोड़ा सा सामने जाके रुक के, कि यार ये सब पे भौंकता है या मेरे से ही ज्यादा लगाव है? तो ऑब्वियसली मुझे पता चला कि यार ये मेरे पे ज्यादा भौंक रहा है। फिर एक दिन घर से डिसाइड करके ही गया था कि आज इसका चक्कर खत्म करना है, और मैं ना उस तरफ गया, और वो एज यूजुअल मेरे पीछे अटैक किया उसने, और दौड़ते दौड़ते आया। वो एकदम फास्ट दौड़ रहा था, मैंने स्पीड भी अच्छी खासी रखी थी, और ऑल ऑफ ए सडन मैंने गाड़ी का ब्रेक लगा दिया, और वो इतना स्पीड में था कुत्ता कि वो दौड़ते दौड़ते आगे निकल गया, और मैं वहां पे ही खड़ा रहा कि देखते यार, बोला ये करता क्या है। वो आया मेरे पास, वो सूंघा और निकल गया। सर ये इलिस्ट्रेशन से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर, आजकल के बच्चे जो है ना, ये 20 साल ये कुत्ते की तरफ दौड़ रहे हैं सर, पर क्यों दौड़ रहे हैं मालूम नहीं सर। यानी एजुकेशन लेना है आज भी सर, एक डिपस्टिक स्टडी भी मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है मॅडम? हा सर आता येतोय, मधात थोडा कटला होता, आता ठीक आहे। एक फोन आला होता कदाचित, तर मी तो डिस्कनेक्ट केला। अच्छा ओके। सर आज भी हम लोग ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते हैं, एक डिपस्टिक अगर आप उनसे इंटरेक्शन करते हो ना सर, डिपस्टिक सर्वे करते हो, तो इन लोगों को मालूम ही नहीं हो मुझे करना है, पर वो करके करना क्या है, ये मैच्योरिटी शायद नहीं है सर। और ये ना चीज़ें कोई बताता नहीं है, फॉर्मल ट्रेनिंग्स इसके ऊपर होती है, पर शायद वो अटेंड नहीं कर पाते हैं, व्हाटएवर इट इज, बट दैट एक्सपोजर इज समवेयर लैकिंग सर। वो ईक्यू हो या आपका एडवर्सिटी कोशेंट हो सर, एक्सपोजर मुझे लगता है कि जब वो आएगा तो बैड एक्सपीरियंसेस आएंगे। और मुझे मेरा सार जिंदगी का ये है सर कि जब तक आपका जिंदगी में बहुत बड़ा अपमान कोई नहीं करता है, आपकी लाइफ नहीं सुधरती है सर। आपका अपमान होना बहुत जरूरी है। आपकी इज्जत सबके सामने अगर कोई निकालता है ना सर, शायद वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन करके काम कर देता है सर। और ये जितने ज्यादा ऐसे अनुभव आएंगे ना, ये क्वेश्चन बस ऐसी बातें रह जाती है सर, अपने आप आदमी निखर जाता है।
True. Kishore sir? Yes, yes, true. और कोई क्वेश्चन सर? Hello, sir. Yes. Hello. So this is Anand Sidana from Kamla Nehru College. Yes, sir. Anand sir. Fantastic session. I must confess. My Thank you. question is, if there are people with low emotional quotient around us, both in personal and professional life, we can't keep distance from them because they are an integral part of our life, personal or professional. We have to work with them. They get hampered, they get angry time and again because of low emotional quotient. So how to handle those people? इसका सिंपल सा जवाब ये है सर कि उनका लो EQ है, उसको इग्नोर करो और अपना EQ बढ़ा दीजिए, तो ये सिचुएशन टैकल हो जाती है सर। ओके सर, थैंक यू। अपने EQ पे वर्कआउट करिए सर। यानी क्या हाँ। अपने EQ पे वर्कआउट करना है क्या? यानी क्या सर, आप फोकस करिए कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों जा रहे हैं, अपना रोल Yes. क्या है, ये अगर क्लियर रहा ना तो बाकी चीजें इग्नोर हो जाती है सर। और कोई भी Right. संस्था हो सर, कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, 4 लोग अगर एक साथ आते हैं तो टसल होना इज क्वाइट ऑब्वियस सर। आप उसको डील कैसे करते हैं, दिस इज व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज सर। ओके सर, थैंक यू। थँक यू व्हेरी मच सर. आय थिंक क्वेश्चन झाले आहेत आणि रिप्लाय पण छान येतो आहे त्यांच्याकडनं की सेशन छान झालं आहे म्हणून. सो आय थँक यू व्हेरी मच सर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड UGC HRDC नागपुर फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. आपकी हेल्थ ठीक नहीं होने के बावजूद भी आपने ये सेशन कंडक्ट किया. सर का और एक सेशन था फ्रेंड्स इसके बाद 12 बजे, लेकिन वो अभी अपन पोस्टपोन कर रहे हैं, तो वो अपकमिंग डेज में आई विल प्लान. आई एम टॉकिंग विथ लिंगेश सर and we will fix the date for next session, and it is related to ICT session, so we will plan it in upcoming days. So thank you very much sir for your today's session, and very informative with excellent examples of our day-to-day life. So it's a very nice session sir. Thank you so much. Thank you madam, thanks a lot to you, and thanks a lot to the participants for listening. Thank you. Take care, sir. Take care, sir. Okay sir, bye bye. Bye. So for the participants there are few instructions. आज अपना लाइव सेशन अभी नहीं है दूसरा, तो मैंने बाकी जो अपने सेशन है वो ICT के अपलोड कर दिए हैं. ये सेशन होने के बाद सर के सेशन का ही एक क्विज है इमोशनल इंटेलिजेंस पे, मैं वो अभी ओपन करती हूँ जो आपको सॉल्व करना है. और कल अपनी छुट्टी रहेगी रक्षाबंधन की, तो आज जो भी टास्क है वो आज और कल का दिन आपको मिल रहा है, 2 दिन, तो आप आराम से उसको देखिए और कंप्लीट करिए. आज शाम तक ही करने की घाई नहीं है, आज का और कल का पूरा दिन आपके पास है. आप कल रात तक या तो शाम तक सारे असाइनमेंट्स और क्विजेस सबमिट कर सकते हैं. ओके, सो वी विल मीट ऑन डे आफ्टर टुमारो, दैट इज ऑन 4th of August. Okay, so have a nice day to everyone. Now you can leave the meeting or you can start your work. Just take a break of some time and then we will move on to ICT sessions. Okay, have a nice day. Thank you. Thank you, Shyam. Thank you, ma'am.